rates मिलते हैं as opposed to small Facebook and Instagram sellers. For the same route, एक courier एक Facebook seller को 250 rupees charge करेगा और एक बड़े brand को 100 रुपए charge करेगा, right? कि 5 साल में जैज़ कैश इजी पैसा अपनी जगह लिटरली बना गया मार्केट में Yeah. So e-commerce में एक side है marketing, bringing the customer to the checkout and e-checking. That no courier service remains consistent. आपका Shopify है तो Shopify पेज ही अपडेट हो जाएगा कि ये पैकेज डिलीवर हो गया और उसके पैसे जब आप विड्रॉ करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म में से तो वो उधर अपडेट नहीं कर देगा इट्स सेकंड। यार ये होता है कि वो कहते हैं कंपनी नहीं यार आपकी कंपनी के साथ काम नहीं करना, लिटरली 15 दिन बाद वो बंदा जो उनके लिए काम कर रहा था वो हायर करेंगे और वो कहेंगे बहुत अच्छा चल रहा था। You're a merchant, you're a medium-sized merchant. You need working capital. Who's going to give it to you? ब्रांड्स और बिजनेसेस के लिहाज से भी उनके एंगल से आप सोचें तो आई थिंक सम ऑफ द डिसीजन दैट दे मेक आल्सो मेक सेंस। आई थिंक वन थिंग पॉजिटिव दो व्हिच आई वुड लाइक टू से कि एक मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स कम थ्रू वर्ड ऑफ माउथ व्हिच शोज मी दैट पीपल डू वैल्यू सर्विसेज। Assalamu alaikum viewers, my name is Umair Arshad. New Commerce podcast series is brought to you by Future Fest. Today we have 3 guests with us, so we are trying to expand this podcast series, and we are trying to make it and bring more people from the industry, those who are the pioneers of e-commerce in industry and in Pakistan. And so we decided to do a group podcast today. We have 3 people with us, those who have been long enough in the industry, and so that we can call them pioneers of e-commerce in Pakistan. They have done so many actions and the executions which they deserve to call themselves pioneers. Not recently, but they've been working from a very long time on this product. It's a SaaS-based product. We'll try to find out what is it about. So we have CEO and co-founder Fatin Tariq with us. We have CFO Umar Munawar, who is also the co-founder, and then we have Chief Operating Officer Adam Ghaznavi, who is also the co-founder. Assalamu alaikum to all of you. I'm so grateful and thankful to 3 of you कि आप तीनों ने time निकाला एक साथ और आए and you give us the opportunity. The reason I'll tell you when we started this podcast series was literally people speak about empowering youth and empowering women, but we as in Future Fest and Ijad Labs and myself, I'm a big fan of empowering the youth and empowering the women. I think this is what we can at least give back to the society, because this industry and society has given a lot to us, and we are one of the blessed people sitting in this room right now. We'll start from Fatin. So since you're the CEO of Smart Lane, so how? Start with Adam. He's the oldest member. अच्छा हम अब उस पे बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से सीनियरिटी पे. I think आप जब start करेंगे, I think when we comes to Adam will be in picture here. Yeah, it's alright, no problem. So we'll keep it this way, it's fine. तो बताएं कैसे ये idea Smart Lane का, because you are in the service industry from a very long time, you're still part of it. When you decide to make a product, how and when? So like you said, बहुत काम किया है e-commerce में. 2012 से मैं और आदम e-commerce में ही काम कर रहे हैं. हमने अपनी जर्नी रॉकेट इंटरनेट के साथ शुरू की थी. We were part of the first sort of batch of kids that launched the marketplace model in Pakistan. तब उसका नाम वो कीमू के नाम से उसको लोग जानते थे. अब वो मर्ज होके दराज बन गया है. So Daraz, as we see it today, was an amalgamation of Daraz and Kimo, and we used to work there. Then around 2014, 2015, Adam and I, we worked very closely over there. And then we realized कि अब because of OLX भी आ चुका था market में, Rocket की वजह से, Daraz और Kimo की वजह से, people had gotten comfortable with this idea of online shopping, right? And now brands wanted to go, sort of utilize this and start their own brand.coms. And what we realized was that जिनके पास जा रहे थे to get their websites made, and किसी को e-commerce का सच कुछ नहीं पता था. सिर्फ country में 3 marketplaces थे. And those people came from a software background. So Adam and I, we met over lunch. And, we said, we come from an e-commerce operations background. So I feel like we can bring more to the table for the brands. And that's how WebWorks started. And then over 8 years, हर किस्म के brand के साथ काम किया. At one point, we worked with almost 90% of all the top retail brands of the country. You name it. Sapphire, Nishat, Khadi,
We at one point we were known as the best e-commerce agency because of the type of results we produce. So we used to develop their websites, their apps. We used to run their performance marketing. We used to run their call centers. We used to manage their, warehousing support, logistics support. So what that did was that it put us in a position to really see what was going on in the ecosystem. कि क्या available है, हमारे merchants के पास क्या available नहीं है. And in fact, before the recording started, we were talking about conversions and how to increase conversions. So from online marketing, performance marketing alone, there's a threshold you reach, right? Then you have to come up with different conversion points, right? So one thing we started noticing was that timely deliveries, right? Because in a cash on delivery environment where 90 to 95% of all your orders are cash on delivery, every day that your order is delayed by, your cancellation rate rises, right? And nobody accepts it as well because I see because I'm also part of this service industry और आप तो product की तरफ move कर गई but I'm still there. So this is the biggest problem and trust me, recently I've experienced 35% of return. Yes. And मतलब कहाँ लेके जाएंगे आप कैसे मतलब एक तरफ से आप मार्केटिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग बिकॉज जब एक एडवर्टाइजिंग कर रहा होता है वो देख रहा होता है शॉपिफाई मैजेंटो या व्हाट्सएवर आपके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है कि मेरी सेल ये करी है एक रन टाइम पे ग्रॉस होता है एक रन टाइम पे नेट होता है अब ये तीसरा सीओडी ने नेट लाके डाल दिया जो रोल ओवर कैंसिलेशंस you are never able to get a clear picture of where your platform or where your brand stands. Exactly. So I just wanted to add this, but I truly agree. And because, we were part of the agency that was doing the marketing, so there was this constant thing where the marketing team would say, we have reached our target. But in terms of gross sales, yes. But in terms of net sales, we weren't meeting those targets. And then you had to sort of really identify what are the other, blocks and pain points, right? Also, Meher, I wanted to add that from the very beginning, when we started the agency, I think year one into it, we were very clear that eventually we wanted our own platform or product. We didn't know what it was going to be. हमें नहीं पता था कि शायद हम अपनी marketplace बनाएं, शायद हम अपना product बनाएं. But one thing was clear that we're in a very unique position to be able to learn from the market and to be able to identify pain points and gaps, which we can better address with our own product later. So, so Smartlane really came into being as our own sort of effort to address the pain points and gaps that we saw that the e-commerce industry had, and we saw our own merchants facing while we were running Webworks. Because देखिए उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी ना कि आप 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं तो आप you're making strategies. तो strategies से आप data you gathering the data, the intelligence of the market, of the industry, the norms. अच्छा सिर्फ local भी नहीं internationally as well. फिर retail means fast fashion retail का मतलब ये है कि आपके हजारों के लाखों के हिसाब से orders लाखों के हिसाब से customers तो वो इतना सारा जब data आ रहा था the data you're sitting on is it's phenomenal. At one point I remember we did a little bit of an exercise and I think it was 2018. We were sitting, I think after the Raz, on the second largest set of, consumer e-commerce retail data, because not just because of us, because the brands we were servicing. जब आप Khadi, Nisha, Generation, Alpha Mall, सबको साथ club करो, right? The amount of data that was passing through our agency and, the different platforms we were running was, was insane. And I must tell you this, that you, the three of you, and especially Adam or Aap, you are lucky and you are blessed that you got the chance to start your own product because you were sitting on a mine of a data. But people those who are sitting on a less mine of a data, उनकी भी ख्वाहिश यही है कि हम प्रोडक्ट बनाएं क्योंकि देखिए आपकी जर्नी इटसेल्फ यानी आज मेरे भी दिल और ख्वाहिश ये है कि मैं भी एक प्रोडक्ट बनाऊं क्योंकि जाहिर सी बात है मैं भी अब 10 साल से इंडस्ट्री में बैठा हूं मैं भी देख रहा हूं कि यार एक टायर ए का ब्रांड है एक टायर बी का ब्रांड है एक टायर सी का ब्रांड है सी वाला ए में जा सकता है उसकी पोटेंशियल है कैपेसिटी है टीम भी वही है वो नहीं जा पा रहा है तो क्यों because so many things like in the market. So what you see, especially in the startup space, right? You see people approaching building products from two different sort of viewpoints. One is that someone sees something that has done well in some other part of the world and they want to replicate it for an emerging market, right? The other thing is someone has just seen something do well in some part of the world and they're like, oh, Pakistan, maybe main ye karna chahunga, right? The other is the very few founders, I'm not saying that none or we're the only ones, but the number is few that have actually been operators in Pakistan
in that specific industry have identified a pain point and built a product for that pain point. So the product market fit is not something that you realize later or you work towards. You're building a product for a market that exists, right? So that's essentially, I think that was one of the edges we had एंड देखिए while बात होती है working कि with Smartlane. आपने प्रोडक्ट बनाया तो आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट कितना कंपैटिबल है, रिलायबल है, क्योंकि एक ऐसे बंदे ने प्रोडक्ट नहीं बनाया कि जिसने बनाना था तो वो आके बैठ के बना गया, उसने 15 साल अपनी इंडस्ट्री को दिए, वहां से हाँ. एक्सपीरियंस लिया, फिर एक प्रोडक्ट बनाया. और ऐसी इंडस्ट्री में आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जहां पे वी ऑल आर फैंस ऑफ नॉट मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स, वी डू स्पीक अप. देखिए एक पाकिस्तान से बाहर का प्रोडक्ट लेके रखने के लिए हमें कितनी आज जो है मेहनत करनी पड़ रही है. आई नो पीपल, आई नो ब्रांच जिन्होंने दुबई में सिर्फ कंपनी बनाई इसीलिए कि यार वो गूगल की पेमेंट्स, फेसबुक की पेमेंट्स, मेटा की पेमेंट्स इनकी कर सके. यहाँ पे Yeah. दो चीजें सबसे अच्छी हैं कि यू पे इन पाकिस्तानी करेंसी तो पैसा बाहर नहीं जा रहा. नंबर 2 ये है कि आप डायल जीरो के ऊपर है ना, मतलब यू नो इफ आई एम वर्किंग इन खाटी, निशाद, ज़ेफायर और छोटे किसी ब्रांड में भी, तो एटलीस्ट आई नो कि पाकिस्तान का प्रोडक्ट है. एंड आई कॉल फातिन और आई कॉल आदम और मैं कहता हूँ मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है. और फिर इस इकोसिस्टम में एक ये भी चीज़ है कि प्रोडक्ट तगड़ा कैसे होता है कि जब हर बंदे के मॉडल में वो फिट होना शुरू हो जाए. तो हमने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई होती है हमारे मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स में. इस पे आई थिंक आपने भी रखी हुई है कि जिस तरह अगर डायनामिक्स की मैं बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स की या कॉन्फेस की, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फ्रेमवर्क बना दिया वो उसी पे चल रहे हैं. उससे हट के वो आपको जाने नहीं देते हैं. अगर आप जाएंगे तो फिर आपसे इतने पैसे लेंगे कि आप तौबा कर लेंगे. जैसे डोम ने बहुत कोशिश की है मार्केट में अपनी जगह बनाने की, मिलियंस लोगों के उड़ा दिए, 4-4 साल लगे. आई नो, आई थिंक आई कैन नेम इट, शू बॉक्स 4 साल से लगा हुआ है पर नहीं जा पा रहा, डोम के ऊपर नहीं कर पा रहा. You know, the push and pull of data, right? And we did a few, this is pre-Smartlane integrations with AX Dynamics, and we know. And we worked very closely with the systems and with the Confis teams. It wasn't just a roadblock on their end or our brand's end or our end, right? It was just something new that had to be done and different APIs had to be created. And it's a very, very cumbersome process, right? Which now people have worked better towards. Again, so you know, when it came down to Smartlane, we built the product and we knew कि exactly हमारे courier partners कहाँ stand करते हैं, उनके लिए हमें कैसे plugins बनाने पड़ेंगे, e-commerce stores जिनको हम plugin कर रहे हैं, whether it's a Magento, whether it's a custom store, whether it's a Shopify store, वो हमने कौन से plugins बनाने हैं. And also we come from a service background, so what we say our product does, it has to do. You know, True. there are a lot of you know, sometimes you have products and people have a list of features and the features don't work. But when you come from a service background, you know that if you have a list of features, the product has to do what you True. go and you tell the customer the product does. You know, आदम, आप बताएं मुझे कि when this product was in the starting phase, आज से ज़्यादा frustration और exhaust होता है आप लोग हो रहे होंगे जब आप बना रहे होते हैं, जब आप brainstorm कर रहे होते हैं और अपने infrastructure वगैरह सारा कुछ जो design कर रहे होते हैं. Tell me something, you know, how was it? Because at that time आप सर्विस और प्रोडक्ट दोनों में इतने ज़्यादा बिजी थे और फंसे हुए थे. तो यू नो, आई वांट टू नो. आई थिंक सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन यही थी बिकॉज एक साइड पे आप इंटायरली सर्विस बिजनेस का डीएनए चला रहे थे, साथ साथ हम एमवीपी भी बिल्ड कर रहे थे स्मार्टलेन का, विच इज एन इंटायरली प्रोडक्ट साइड टाइप ऑफ बिजनेस. तो वो डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग था. प्लस लॉट ऑफ द टेक्नोलॉजी टीम्स वर्क वेरी डिफरेंटली. ई-कॉमर्स टेक्नोलॉजी टीम्स वर्क वेरी डिफरेंटली, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी टीम्स वर्क वेरी डिफरेंटली, इंटायर डिफरेंट. यहाँ तो प्रोसेस बनाने, फ्लोज बनाने, बहुत मुश्किल था. और कोई भी चीज़ करनी है, मतलब इट बिकॉज उधर आप लेमन भी इवॉल्व कर जाता है, इधर प्रोडक्ट में लेमन का कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं. यहाँ पे आपने हार्डकोर कोड की, आप फंक्शन की, सारी लूप्स की, इन चीज़ों की बात करनी है. इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ प्रोडक्ट गाय, आई थिंक रॉकेट इंटरनेट वगैरह जो सीखा था वो अनलर्न करना पड़ता है कई दफ़ा बंदे को, और वो अभी भी जारी है क्योंकि इतनी देर हो गई थी ई कॉमर्स करते हुए कि ये बिल्कुल एक ऑल्दो लिंक्ड था टू ई कॉमर्स, बट स्मार्टलेन इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बिजनेस. इट्स अ फुलफिलमेंट बिजनेस, ऑप्टिमाइजेशन बिजनेस है, इसमें फिनटेक के एलिमेंट्स हैं, चीज़ें हैं जो हमें, मुझे तो एटलीस्ट नहीं इतनी कमांड थी उनके ऊपर. तो वो डेफिनेटली एक चैलेंजिंग टाइम था, बट फिर उसका मज़ा भी आता है जब वो चीज़ बन जाती है, आप सीख लेते हैं कोई चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं. जैसे मुझे एक एग्जांपल इसका याद है, एक ब्रांड था, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, हमने सोचा कि यार दिस वाज एन आइडिया, आई वांटेड टू टेस्ट कि क्या होता है. तो विदाउट कंफर्मिंग, वेरिफिकेशन के बगैर, मैंने कहा सारे पार्सल्स भेजो वेरिफिकेशन के बगैर.
एंड लेट्स सी तेजी से जान वेरिफिकेशन में एक टाइम लगता है, बिकॉज आप 3 दफ़ा कॉल करते हैं, कस्टमर वेरीफाई करता है, सो इसलिए हम वेरीफाई नहीं करते, हम भेज देते हैं, देखते हैं कैंसिलेशन रेट में फ़र्क क्या होता है। एंड व्हाट वी रियलाइज वाज कि जल्दी पार्सल भेजने से 60% 60% रिटर्न रेशो में कमी आ गई थी। सो आई रियलाइज कि उस वक्त के टाइम जो है वो मैटर्स। I just want to add that this was the time, you know, when we were sort of flirting with different ideas of हमने क्या करना है खुद से, you know, and आदम को, and ये हमें एजेंसी में मजा भी बहुत आता था because Adam and I were both very hands on. तो बैठे बैठे, you know, he used to just walk in one day and be like, by the way यार वो मैं उस ब्रांड को नहीं बता रहा, लेकिन मैं सारे ऑर्डर्स निकलवा रहा हूँ, मैं अपना, you know, अपना डेटा गैदर करने के लिए, to sort of be like, अगर ये ना करें, सारे ऐसे करें, हम बस ऐसे करके देख लेते हैं, will we be able to optimize something for our हम brands? सब अगर अपने कैरियर में अगर ये वाले मूव्स जो बोल्ड मूव्स कहलाते हैं ना लेते, आज हम यहाँ नहीं बैठे हुए होते। मैं नहीं काम कर सकता किसी भी बंदे के साथ या किसी भी बिजनेस या ब्रांड के लिए जो मुझे मेरे डिसीजंस नहीं लेने देगा। देखें, टाइम्स आते हैं जहाँ अपने अच्छे डिसीजंस भी हो जाते हैं, बुरे भी हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के आप ये नहीं कि टनल विजन से बाहर निकलना है आपने, वरना तो टनल विजन के अंदर आप रह जाएंगे। ये जो बात आदम ने की है, बेसिकली आपने उस टाइम रियलाइज कर लिया, इट्स गुड। आज हमें ये बात समझ आ गई है कि the only solution, the biggest hit we as an e-commerce business we are getting today is COD। वैसे ठीक है 100%। कि हमारे एजेंसी के जुबान में कहते हैं वादे की सेल। ये वादे की सेल है ना, कि मतलब वही आप वाली बात है कि ग्रोथ तो 10 करोड़ का हो गया और नेट 6 करोड़ का हो रहा है। इतना बड़ा गैप नहीं होता इंडस्ट्री में, 1%, 2%, 3% जहाँ पे आप COD एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फूड पांडा की देखें आप, मुझे फूड पांडा की एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, क्विक कॉमर्स है ना, यू ऑर्डर यू गेट इट। तो जितनी देर गुजरेगी कस्टमर विल स्टार्ट losing the interest in the product. Yeah, people take it for granted how much. Now, when you talk about delivery optimization, right? It's not. ये बहुत एक लंबी conversation है। इसी की वजह से देखिए, one of the biggest reason प्रोडक्ट बनने की ये है Yeah. कि जितना डाटा आपने उठाया, आज मुझे भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है कि पहले मुझे अपना ग्रॉस पूरा करना पड़ता है, फिर मुझे अपनी टीम को ऐसे इकोसिस्टम से इवॉल्व कराना पड़ रहा है कि भाई जो भी मार्केटिंग कर रहे हो ये ज़हन में रख भाई 20% रिटर्न आनी है। मतलब whenever you go you see $100,000, that is not 100,000, that is 80,000 for you। फिर मुझे जाके अपने फाइनेंस को भी ये समझाना पड़ता है कि भाई आप भी जब शॉपिफाई खोल के देख रहे हैं तो ये नंबर नहीं है। हम स्मार्ट लेन में ये नहीं मानते, हमारा विजन ही यही है कि ये नंबर 20% पे नहीं होना चाहिए, और नहीं है, नहीं है असल में। ये इसलिए है बिकॉज सिस्टम के अंदर लीकेजेस हैं जिनको फिक्स किया जा सकता है। आई एग्री, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं अच्छा देखें, एक ब्रांड की रिटर्न थी 35%, एक ब्रांड की थी 30%। अब मैंने ये देखा कि वो ब्रांड जिस इंडस्ट्री से रिलाई करते हैं, अच्छा वो सिस्टम में लीकेज थी, तो बिजनेस इज ब्रांड इज गोइंग टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द लीकेज। नाउ दिस कन्वर्सेशन इज सेपरेट, स्मार्ट लेन की बात वाले कॉन्सेप्ट में नहीं कर रहा हूँ, स्मार्ट लेन एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर मैंने तो अपनी एफर्ट है उसके अगेंस्ट अपने चार्ज लेने, तो मैंने आई डिसाइडेड, आई कॉल्ड द ब्रांड, आई टोल्ड कि लिसन ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा, मैं 1 तारीख को ऑर्डर लैंड कराता हूँ, आप भाई 4 को मूव कराते हैं, CN आप 2 को लगा देते हैं, वो वहीं पे बुक देखिए, दिस इज क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन है ना। Yes, लेकिन हाँ। तीन चीजें हैं जिनकी वजह से होता है। वन, किस सेगमेंट में है, जो आपका बड़ा पैकेज है वो ज्यादा रिटर्न होता है अगर वो COD में हो, इसलिए ब्रांड ने क्या किया, एडवांस पेमेंट लेना शुरू कर दी। ठीक। यस, सेकेंडली, जो पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन होती है। लोग कहते हैं यार फलाना बंदा छुट्टी पे था, वो बंदा नहीं आया, फलाना नहीं आया। यस, सेकेंडली, थर्डली, सारा डेटा एक जगह पे नहीं है। नहीं है, आपने एक One window dashboard की बात कर रहे हैं ना, दूसरे बिल्कुल portal नहीं है, में yes। एक जगह पे नहीं है। Yes। ठीक है, तो ये जो 3 चीजें इनको सॉल्व करना, द पर्पस वाज दिस। वेरी गुड। देखें, यस प्लीज। No, आप बोलना। अच्छा, मैं आप बहुत अच्छी बात आपने की। देखें, जितनी मैंने आगे आपसे पॉडकास्ट से पहले मैंने आपसे ये बात की थी, जब फातिन भी नहीं आई थी, मैंने आपको बोला कि जब हम सब अशरफुल मखलूक़ात हैं, जब हम सब बात कर रहे होते हैं ना, हमें एक दूसरे को पता होता है, पीछे से एक स्पिरिचुअल हमारे अंदर एक वो होती है चीज़ जिससे हमें पता चल रहा होता है कि यार ये सच है, ये झूठ है, जो पीछे डिवाइड कर रही है। एज एन कर्टेसी, एज एन रिस्पेक्ट हम बोल रहे होते हैं जी जी जी, लेकिन पीछे मेरा दिमाग कह रहा है कि यार जो ये बात आ रही है, ये झूठ है, ये सच है, ये झूठ है, सच है, वो बाइफिकेशन चल रही है। प्रॉब्लम ये है कि एक नंबर 1 कितनी देखें, हम 10% वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड ई कॉमर्स का रेवेन्यू जो है उसमें हम 10% का शेयर डाल रहे हैं पूरी दुनिया के ई कॉमर्स में। हमारे नंबर्स डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर ग्रो कर रहे हैं।
और शायद कोई चीज़ हमारी ग्रो नहीं की होगी, लेकिन हमारा ई कॉमर्स का नंबर ग्रो कर रहा है। आज हम 5% रिटेल को ऑनलाइन के रिटेल से ऑनलाइन के बिजनेस को 5% बना दिया। 3 साल पहले वो 0 भी नहीं था। लोग अब अफोर्डेबल भी है, PNL भी खड़ा हो गया, सब हो गया। अनफॉर्चुनेटली किसी ने अभी तक बड़े बड़े बिजनेसेस की भी अगर हम बात करें, उन्होंने सोचा है कि यार एट टू व्हाट पॉइंट मैंने अपनी COD बंद कर देनी है, नो मैटर व्हाट। मैं आपको बताता हूँ जो मेरा ख्याल है, एंड उमर आई थिंक वुड बी एबल टू आंसर बिकॉज़ ही इज यू नो। अच्छा, मैं इस चक्कर में मैं भूल गया था ऊपर भी I है। just say वही मैं कह रही थी नहीं, कि नहीं, हम we'll move, जल्दी we'll से move, इसके इसलिए मैंने बाद पैरी और किया तो- आपको इस तरफ। तो बेसिकली इसके जो मैंने देखा है यार, COD आप कल आपने इतना काम खुद भी करते हैं राइट, कल वेबसाइट बनाए, फिर सोचेंगे कितना टाइम लगेगा पेमेंट गेटवे लगाने में। ये प्रॉब्लम्स है हमारे मुल्क में, इसलिए और लोग इनकम शो नहीं करना चाहते। देयर आर 2 रीजंस इसकी वजह से COD परसिस्ट कर रहा है और करता रहेगा। तो फिर देखें, फिर आप तो भाई फेर रहे हैं कि देखें। अच्छा, मैं Agree, ये but this is देखें, the इस reality. चीज के ऊपर आके आपने देखा होगा, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मैं कहता हूँ सीधा सीधा COD हटती है, हमारी चीजें ऑटोमेशन पे चली जाती है, एटलीस्ट वी गेट द ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस। आपकी बात सही है कि पीपल डज नॉट वांट। अच्छा, I know, but उसमें Umair, another problem is the plastic in the country. यस आई अंडरस्टैंड, Okay. लेकिन देखें Yeah. मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सोचे। अब अगर हम ये सोचेंगे तो हम प्लास्टिक मनी से ज्यादा हम एक चीज ये भी कर सकते हैं। रिसेंटली आई वाज स्पीकिंग टू समबडी। अच्छा, हम समझते हैं कि हम एज एन इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, हम हैं, लेकिन लिटरली जब हम मैं ऐसे लोगों में भी उठता बैठता हूँ जिनका एक्सपोजर नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी वो ऐसे आइडियाज निकाल के लाते हैं। आई डोंट नो ये आइडिया जो मैं बोलने लगा अच्छा है बुरा है, आपने सुना होगा डेफिनेटली। उसने एक अच्छी बात की, उसने बोला यार एटलीस्ट 10 लाख का पार्सल मूव कर रहे हो तो 300 रुपए की डिलीवरी चार्जेस हैं, कम से कम ब्रांड्स बोल लेना तो शुरू कर दें लोगों से। आई डोंट नो, मुझे अच्छा लगा उन्होंने idea। किया था जोमो हैड डन दिस। उन्होंने ये किया था वेयर सेम डे डिलीवरी के वो आई थिंक 400 रुपए दे वर चार्जिंग, बट आई डोंट नो In advance? आई थिंक सो। आई डोंट मुझे पता था जोमो ने कुछ एक अलग वो कॉन्सेप्ट ये था कि 42 साइज का जूता ऑर्डर करो, 43 41 साथ आएगा, वो पहनाएंगे। Which was Zappos. Zappos का model था ना। हाँ, बिल्कुल, So yes। basically, so Zappos was one of the earliest case studies that we were, made to look at back in the day when we were at Rocket. कि वो आपको एक साइज अप एंड 1 साइज डाउन बेचते थे कि कन्वर्जन हर हाल पे हो लेकिन जाए। जो इंडिया ने रियलाइज किया ना, जो हमने नहीं किया अभी तक, वो ये है कि कस्टमर बिहेवियर पाकिस्तान का एक टाइप का है। हाँ, वो कस्टमर बिहेवियर एक हद तक चेंज हो सकता है। पीपल आर नॉट ये मैं भी ये सोचता था, मैं भी जब अमेरिका से केस स्टडीज पढ़ के आया था ना, तो मैं वो ये ट्राई करते, पीपल डोंट केयर। आप उनको 6 जूते बेच दें, देयर आर नॉट इनफ कस्टमर्स जो उन 6 जूतों के लिए एक्स्ट्रा पैसे मैं देंगे। आपको ये प्रॉब्लम है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देन वी कम टू उमर। ठीक है, सॉरी वी कुडंट। अच्छा, अब मैंने ना रिसेंटली एक ऐप इंस्टॉल की एक स्टोर के ऊपर, क्लैरिटी, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। आपने अगर हीट मैप का नाम सुना हो तो ये उसकी तरह है, बट दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्रेजी है। यस, मतलब उस पे आप फ्रंट एंड यूजर का फ्रंट एंड एक्सपीरियंस देख रहे हैं ना, लिटरली व्हाट ही इज और शी इज डूइंग। अच्छा जी, मैं एक सेक्शन बनाता हूँ वेबसाइट के ऊपर, उसकी कैंपेन बनाता हूँ, मैं उस पे पैसा लगाता हूँ, उसकी ऑडियंस भी सेपरेट करता हूँ, मैं उस पे ऐड लगाता हूँ, कस्टमर क्या कर रहा है, एंड आई एम लिटरली एक होता है ना, हम कहते हैं कि सर क्या करें, हमने तो लैंड यहाँ कराया था, वो वहाँ जा रहा है। अब मैं कस्टमर के सामने एक वीडियो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि फातिन इज अ कस्टमर, शी कम्स, आई शो द एड ऑफ आईफोन, वो लैंड होती है आईफोन एप्पल में, उसके बाद वो वहां से उठ के दोबारा जाके सब्जी आलू टमाटर लेके जा रही है। अब मैं क्या करूं? अब मेरी कैंपेन को मैं देखूं तो उसका रुआस भी ठीक है, $25 की कैंपेन लगाई हुई है भाई, $250 का दे रही है, 20-25 का रुआस है, वो भी ठीक है। अब सब कुछ ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बेचना चाह रहा हूँ वो बिक नहीं रहा, दिखा भी रहा हूँ, स्ट्रेटेजी भी है, सारा कुछ है। वैसे हम जो बेचना चाहते थे वो बिक जाता था। या नहीं यार। अगर दो है ना, अच्छा, या तो देखिए। मतलब बंदा फनल में डाल रहे हैं या वो चीज आपकी बेहतर है। अच्छा, बात ये थी, यस सही है, इट्स फाइन। बात ये थी कि कस्टमर एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, जहां आदम ने बात की, तो मैं कह रहा था कस्टमर बिल्कुल इंडिया वाला और जो पाकिस्तान की बात इन्होंने की कि हमारा बाइंग बिहेवियर ही अलग है। क्यों? क्योंकि नया यानी कि देखिए देयर इज नो कस्टमर। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में, अच्छा एक तो हर बंदा अपने आप को ब्रांड कहता है, मैं बाय डिग्री भी फैशन पढ़ा हूँ, बाय डिग्री मार्केटिंग भी मैंने पढ़ी हुई है, जितनी मैंने पढ़ी है बहुत अच्छी नहीं पढ़ी है, बट माय CGP वाज 3.93 एंड आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन। तो मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में ये सब अपने आप को ब्रांड कह रहे हैं।
पता नहीं अभी ये बात लोगों को बुरी लगेगी डेफिनेटली, मेरे हिसाब से मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन पाकिस्तान में 10 ब्रांड है बस। ब्रांड वो है जो डिस्पाइट व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट अपने एंड यूजर के लिए सोचे, अपने एंड यूजर के लिए डिसीजंस ले, तो तब जाके वो फिर आप ब्रांड कस्टमर लॉयल्टी और ये चीजें इन पे काम करेंगे। यहाँ पे ब्रांड ये देख रहा होता है कि भाई मतलब देखें यार, I अनफॉर्चुनेटली think we're confusing businesses and brands, right? I think that's what's happening. yeah It's that's a small yes business. it's a You small can't say it's business, a आपने उसको ब्रांड बना दिया है। अब आप देखें कि ब्रांड है ये कि 5,000 रुपए का प्रोडक्ट है, जब वो देखता है कि सेल लगाने जाता है 6,500 का करके 40% सेल लगा देता है, एंड वो समझ रहा है लोगों को नहीं पता है, सीरियसली ये लोगों हो को रहा है। पता है। रिसेंटली एक बहुत बड़े ब्रांड ने, नाम मुझसे निकलने लगा था, बहुत बड़े ब्रांड ने निकाल सेल दे, निकाल दे नहीं आप, बता दे। नहीं वे तो थोड़ा समझ दे आपका ही तो नहीं है ब्रांड। हाँ नहीं आपका मेरा brand नहीं है, मेरा नहीं है, किसी और का है, लेकिन आई डोंट फील इट्स नहीं, ठीक, of इट course. डजंट लुक गुड। We'll take guesses. No, you can't take guesses. I'm joking. अच्छा, तो मेरे कजन ने आके मुझे बताया कि बोलता है उमर भाई कल मैंने ये प्रोडक्ट खुद, अच्छा इवेंचुअली उसने खरीदना था, उसने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था कि यार कि मैं भूल ना जाऊं, वो एक ब्रांड के पास एक्सक्यूज बहुत जाते Price हैं। को hike up करके, discount लगा के, because you play on the customer एंड यू psyche, थिंक right? कि If the आपको क्या customer- लग रहा है, तो क्या आप मिड फनल भी लगा रहे हो, बॉटम भी लगा रहे हो उसके ऊपर? 2013 में ये आप कर सकते थे, अब हाँ, नहीं कर सकते। अब नहीं कर आप, सकते हाँ। आप। उमर मुनव्वर, इस सारी पिक्चर में जो आपका माशाल्लाह जो आपका फिनटेक वाला जो तजुर्बा है सारा, क्योंकि जितने भी स्मार्ट लेन जैसे प्रोडक्ट्स हैं, मैंने वहां कहीं पे अभी तक फिनटेक का कोई बंदा देखा नहीं, तो टू बी ऑनेस्ट Yeah. मैं यू नो दिस इज आई एम क्यूरियस कि व्हाट रोल यू आर प्लेइंग इन दिस, डेफिनेटली इट मस्ट बी अ बिग रोल। So yeah, so before I let Umar take over, Yes. tell you how we met Umar, right? तो हमारे पास, you know, like I said, marketplaces पे भी हम काम करते थे, stores पे भी काम करते थे। तो उमर तब फिंजा पे थे और उमर हमारे पास आए एक मिडिल वेयर बनाने के लिए, फिंजा के लिए। इनकी एक सिमसिम मार्केट प्लेस उन दिनों में बन रही थी, and और उसके सैलरी लिए वगैरह भी ट्रांसफर होती थी वहां से। जी जी, मेरे ये ख्याल से लोग वो- ये बहुत, इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट फिनटेक्स ऑफ द कंट्री। यस 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 तो ये आए हमारे पास उस पे काम करने के लिए। सो वी वर्कड एंड हमने एक प्रोजेक्ट पूरा इनको बना के दिया। इनके सीईओ साहब कोई और थे एंड हमने उनकी पूरी टीम के लिए काम किया। सो ड्यूरिंग दैट टाइम वी फॉर्म्ड अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप, एक जो होती है यू नो क्लाइंट के साथ एक गुड रैपोर। एंड उसी जमाने में आदम एंड आई वर थिंकिंग कि अब हम अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। And when we sort of came up with this, you know, okay, this is a pain point, and we realized that finance and cash flow is such a big component of this pain point, right? Of fulfillment, of late deliveries, of working capital for the अच्छा merchants. तो ट्रांजैक्शंस ही है ना। Yeah. अब उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हैं और बाकी भी हैं, तो बेसिकली जो मॉडल है स्मार्ट लेन का ट्रांजैक्शंस पे ही खड़ा है, And we ई-कॉमर्स can't- ट्रांजैक्शंस ही Maybe हो we रही need to describe smart. Maybe that's what you're saying. Yeah, Yes. so essentially, when that came up, we knew, you know, एक होता है, it's good to know when you are out of your, you know, bandwidth. Like it's good to know, okay, so, and we were like, this is the guy we need to bring on board to do this with us. तब he और was, देखिए वो फिर कुछ yeah. चीजें ऐसी होती हैं ना, स्पिरिचुअल भी होती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो क्या Destiny. डेस्टिनी, हाँ, कि ये नहीं कि देखें, जब अगर सिम की मैं बात करूँ तो दैट मींस के आप भी पायनियर ही हैं, आप भी वो फिनटेक के अंदर, बिकॉज जब सिम बनी थी तो तब लोगों को अच्छा, बिलीव ये दोनों लोग जो हैं बहुत बिलीव करते हैं डेस्टिनी टाइप चीज़ों अच्छा, के बारे में। मैं वैसे मैं- बता रहा हूँ, पर काम मैं काट भी- कर लेना, लेकिन बहुत ज्यादा। मैं भी बिलीव बहुत करता हूँ। अच्छा मैं इतना नहीं करता, थोड़ा काम। देखिए वो मैं बहुत बिलीव करता, लेकिन आपकी मेरी वो जो आपसे बात हुई थी वो ठीक है हाँ। कि बिलीव है, हाँ। लेकिन सारा कुछ अब वो बात तो नहीं, ये तो वो फिर बात होगी कि मैं छत से छलांग मारूं कि यार जिस दिन जो रात कब्र में वो बाहर नहीं है। ट्रस्ट इन गॉड बट लॉक योर कार। प्लीज उमर। तो यार मैंने अपना जो पाकिस्तान में करियर स्टार्ट किया था वो फिंजा से किया था, फिंजा का को फाउंडर। उधर जब फिंजा बना रहे थे तो थिंकिंग यही थी कि हम कंज्यूमर या बिजनेसेस को लेंड किस तरह कर सकते हैं। तो वॉलेट वाज द फर्स्ट काइंड प्रोडक्ट दैट वी क्रिएटेड कि ट्रांजैक्शनल डेटा के ऊपर हम लेंड करेंगे। जिस पे हम सैलरी प्रोसेसिंग भी का प्रोडक्ट भी बनाया, एडवांस अगेन सैलरी देते थे टू द कंपनीज हु वर प्रोसेसिंग सैलरीज टू अस। वन क्लिक के ऊपर वो का जो एम्प्लॉई है वो पैसे ले सकता था और उसके नेक्स्ट पेरोल पे वो पैसे कट जाते थे, ठीक है। उसके पेरोल में से। देन इसको एक्सपैंड करते करते जो प्रोडक्ट वी केम अप वाज FMCG के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ और FMCG प्रिंसिपल्स के साथ वी क्रिएटेड अ प्रोडक्ट के करियाना को किस तरह लैंड कर सकते हैं। एंड दैट क्योंकि अगर मेरी एक आदत है कि किसी भी चीज़ को फंडामेंटल तक ब्रेक करो। फंडामेंटली अगर आप अपनी इकोनॉमी को ब्रेक करें ना
तो एक सेक्टर ग्रो कर रहा था एक्सपोनेंशियली, दैट इज रिटेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, रिटेल ओवर द लास्ट डेकेड बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है. एक्चुअली उसके नंबर्स बहुत बड़े हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ रेवेन्यू, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ना 400% तक ग्रो कर Yeah. रहा है. यस ट्रू, बिल्कुल सही बात है. And और उस साइड के ऊपर अगर आप देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड तो हम है नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग साइड के ऊपर हम ज़्यादा काइंड ऑफ लेंडिंग और उस साइड को करें, एंड उधर लार्ज बैंक्स अवेलेबल हैं. तो प्रॉब्लम ये थी कि एक छोटे किराना स्टोर को अगर क्रेडिट चाहिए तो वो किस तरह ले सकेगा. वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाता, वो तो P&L बैलेंस शीट बना के बैंक के पास जाके फाइल करके 30 दिन वेट नहीं कर सकता 30 डेज के लिए कि आई विल गेट अ लाइन. तो वी स्टार्टेड अ प्रोडक्ट कि यू कैन बाय द प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट फ्रॉम द प्रिंसिपल्स, एंड दिस वाज अ टाइम पीरियड लो इंटरेस्ट. ये आप वो टैबी वाला कॉन्सेप्ट बाय नाउ पे लेटर की बात कर रहे हैं. This was, yes, for the Karyana Actually, तो stores. out of Pakistan, Tabby is one of the famous ना, जो ऑस्ट्रेलिया से ही मेरे ख्याल से, because आप भी मैंने देखा था, आप माशाल्लाह आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं मेरे ख्याल से. So मैं वहाँ से पढ़ा भी हूँ, मैंने वहाँ काम भी किया, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो भी वहाँ से पढ़ा है, उसने भी वहाँ पे काम किया, और जब वो यहाँ पे आया 5 साल पहले, तो उसने मुझसे ये बात की कि यार टैबी हमने खोला, टैबी हमने देखा. उसने बोला यार टैबी तब दुबई भी आ चुका हुआ था. मैंने बोला बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, तब ये BNPL का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान में. तो बल्कि BNPL के फर्स्ट प्रोडक्ट्स केम आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. हाँ ये इसीलिए मैंने वो एकदम कनेक्ट कर लिया. बिजनेस PNPL भी और कंज्यूमर BNPL भी, क्योंकि एक वो डेकेड ऐसा था कि जहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत लो थे. बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने अभी तक पाकिस्तान में देखा है कि BNPL कोई भी कामयाब नहीं हुआ. मतलब किस्त पे भी खुला, किस्त पे भी खुला. It's not that product is not the product is not good. प्रोडक्ट सारे अच्छे हैं. बीच में I'll give थोड़ा सा लेवरेज दे दूंगा. देखिए वो 80-20 वाला रूल तो होता ही है, ठीक है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मार्केट का, जैसे आदम कह रहे थे, हमारे मार्केट का बिहेवियर कुछ अलग है कि मुझे नहीं समझ आई उस टाइम 5 साल पहले मेरे दोस्त ने 2 मिलियन खर्च किया. छोटा नंबर होगा, लेकिन ये कि उसने, उसके लिए वो बहुत बड़ा नंबर था. हमने वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, हमने किसी हद तक बना भी लिया. लेकिन वही आपकी बात है, वो जो फंडामेंटल्स ड्राइव करते हैं, जब आप नीचे आते हो तो किस बेसिस पे आप पैसे लोगे. कि ऑस्ट्रेलिया में क्रेडिट हिस्ट्री है. यस. कि आप लो, यानी कि जैसे कि मैं जब मैं सर्विस इंडस्ट्री को अब देखता हूँ ना, तो जब मैं अपनी बिलिंग देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि यार मेरी बिलिंग 5 मिलियन की है. यानी कि जिस दिन, यानी कि मेरे बिजनेस का एक ये लॉस है कि जिस दिन मेरा सारा क्लाइंट भाग जाएगा, मेरा 5 मिलियन चला जाएगा, क्योंकि मैं पोस्ट बिलिंग कर रहा हूँ. इसी तरह एक आदमी के ऊपर वहां पे UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक कैप लगा हुआ है कि इसको 10,000 पाउंड की या डॉलर की क्रेडिट लिमिट दी है. दैट मीन से भागेगा इतना लेके. तो वो इकोनॉमी को देखते हुए इतने ही लोगों को लोन दे रहे हैं. लेकिन यहाँ पे, पर वहां पे ये कि यू विल लूज समथिंग. वहाँ थोड़ा सा फर्क ये है कि वहाँ का क्रेडिट ब्यूरो जो है ना काफी स्ट्रॉन्ग, Yes. एंड देयर प्राइवेटाइज्ड क्रेडिट ब्यूरो. तो व्हाट हैपेंस इज दैट if you are doing a rental of a thing and you are delaying that rental, तो वो भी रिपोर्ट होता है. अच्छा सॉरी, स्पेशली जो 2030 तो लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हुआ था 2007, 8, 9 में. 8 में यस, ठीक हो गया. आई वाज इन लंदन दैट टाइम. तो 2008 में जब लेमन ब्रदर्स हुआ था, तो आई थिंक $50 बिलियन या $80 बिलियन के साथ वो बैंकरप्ट हुआ था. तो बेसिकली वो $40 बिलियन बैंकरप्ट हुए थे 50 साल में. मतलब इतने देर का क्रेडिट था. वो $40 बिलियन जो था वो था 3 या 6 महीने का. तो उसके बाद उन्होंने सारी पॉलिसीज चेंज कर ली कि भाई ये अब सिर्फ ये नहीं होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे मेरे अकाउंट बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, और इतना लेके बैठ जाओ कि भाई तुम सारी जिंदगी खाते रहो. इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर ना बेसिकली. सो क्रेडिट ब्यूरोज आर वेरी स्ट्रांग देयर. अगर आप फोन भी लेते हो इंस्टॉलमेंट में, that private party is reporting your installments, are you paying that timely basis. If you delay that would be reported on the credit bureau. That will affect your credit score. So Pakistan में जब मैं आया तो we started this with Karyana. We started giving credits to Karyana store that you can buy products today, you can pay us after 30 days. And so that was a B2B model basically. B2B. यानी कि मेरा करियाना है, मैं आता हूँ, मैं आगे hypothetically speaking अलपत्ते से ले जाऊँ और फिर 40 दिन बाद. So distributors B2B हो गया. B2C में नहीं के. अच्छा ये वेरी गुड. जितने भी वैसे अच्छा अब मैंने जितने BNPL देखे हैं ना, ये सारे B2B में ही फ्लॉट कर रहे हैं. कह रहे हैं अभी एकदम B2C में नहीं घुसना है, क्योंकि B2B में आप सर्वाइव कर जाते हो. क्योंकि आई नो कंपनी दे आर गिविंग दिस, आप वो एक सैलरी एडवांस ले लो, फिर या उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है, ये 3-4 अप्लायंसेस ले लो, 3 सैलरीज में दे दो. लेकिन वो अपने आप को सिक्योर ऐसे करके कि मैं आगे वेबवर्क्स के साथ अपना MOU कर लूं कि भाई आपको कोई भी एम्प्लॉय भागेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है.
Yeah. तो वो उसी तरह फिर So basically idea यही था कि you buy today, you pay later, and we got the data from the distributors. We were working with Unilever, we were working with other anchor companies as well, FMCGs. So we started giving that on credit, and we were low interest rate environment था 7% 8%, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2020 में ही था. Today it's 21. ठीक है. And why BNPL worked last decade in the developed market was these zero interest rates थे तकरीबन near zero. At that होलसेल वाला point. ना, हमारे कपड़ों की होलसेल की तरह 15-20% हम वेंडर से उठा लेते थे, तो उधर हमें 0% इंटरेस्ट पे देके, तो वी यूज्ड टू 5% of the sale value. जैसे you used to वेप get. ने भी मार्केट अपनी सिगरेट वाले पीने वालों के बीच में ही बना Yeah, दिया yeah, ना. yeah. उसने बोला कि ये रिप्लेस नहीं हुआ, पर उसी के अंदर से वो अपना 1-2% उठा के लेके आ गया. Yeah. तो करियाना के अंदर biggest thing and the biggest challenge that I saw that we were scaling it is collection cost. क्योंकि all their sales, most of their sales of the Karyana stores is on cash, so they don't pay you digitally back. You were collecting that money, only 50% of the And portfolio here was comes paying. tax. 50% of the portfolio was paying you through Easy Paisa, Jazz Cash, or your own wallet, or a bank account. जब repayment का time आता था. Other you had to collect cash. अच्छा, when it comes to financial apps or something, I think पिछले 10 साल नहीं, पिछले 5 साल में जो biggest achievement है ना, कि जैज़ कैश, इजी पैसा, ये दो बड़ी अचीवमेंट्स है. एक कि 5 साल में जैज़ कैश, इजी पैसा अपनी जगह लिटरली बना गया मार्केट में. Yeah. कि माय cousin, she came, और they were surprised, she came from UK, तो वो भी for here shopping पे आए हुए थे. तो जब वो चले गए शालमी और इधर उधर चीज़ें लेने के लिए, तो कार्ड तो नहीं चलता, लेकिन एटलीस्ट ये था कि वो ड्राइवर उनके साथ था, तो वो उसको ट्रांसफर कर देते, ड्राइवर इजी पैसा से वहाँ ट्रांसफर करता था. तो शी सेड, ओ यार अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दे आर नॉट इन हैबिट टू कैरी कैश. मुझे भी नहीं याद मैंने लंदन में कभी 5 पाउंड से ऊपर का नोट कैरी किया होगा. तो एक ये चीज़ बड़ी अच्छी मार्केट में जगह बना गई. 100%. सेकेंडली करीम, उबर, यांगो, ये सारे भी मार्केट में अच्छी जगह बना के, कि आज से जब तक ये नहीं आई थी तो लिटरली शायद हमें अपने घर से बेटियों और बहनों को छोड़ने के लिए जाना पड़ता था और लाना पड़ता था. पर इस एक इनोवेशन के थ्रू एटलीस्ट वी फील सिक्योर. बट स्टिल 100% मैं इवन पाकिस्तान की बैंकिंग एप्स को भी 100% मार्क नहीं दूंगा. मैंने रिसेंटली फैसल बैंक की ऐप से एक राइडर को जो मेरे घर पार्सल लेके आता है 2300 रुपया पे कर दो. वो मुझे कहता है नहीं आए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन, आज 6 महीने गुजर चुके हुए. उसने मांगना छोड़ दिया, मैंने बैंक को फोन करना छोड़ दिया. Probably not the app, right? That's probably the. Yeah, that's the infrastructure in between. मतलब क्या कि देखिए, but I am to blame the bank. yeah. I am because it's the blame- I bank's am- responsibility क्योंकि मैं to कैसे have the- अच्छा देखिए, मैं टेकी भी हूँ, मैं इंडस्ट्री में भी हूँ, बट स्टिल मेरे अंदर वो जैसे एक औरत तो होती है ना, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी पोस्ट पे आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर नॉर्म्स तो नहीं चाहते उसके औरत वाले. ठीक है, कैसे, कौन से वाले? मतलब बहुत सारी चीजें हैं ना, यानी कि जैसे टिपिकली घर की चीज, जैसे बेसिकली अगर जैसे इवन अगर मैं फातिन की बात करूं, शी इज अ कोऑपरेट वुमेन, बट व्हेन शी कम्स टू होम, तो क्या वो कुछ चीज तो अपने हाथ से करती होंगी, या वो औरतों वाले एस्थेटिक्स तो होंगे, ये बोतल यहाँ क्यों पड़ी है, वो चीजें वहाँ क्यों पड़े हुए, काफी ज्यादा. ठीक है, वो नहीं जा सकते उसके अंदर से. इसी तरह बेशक हम जितने भी ई कॉमर्स में अच्छे प्लेयर्स हैं, जो भी है, लेकिन मुझे चाहिए किसी को ब्लेम करना है. तो मैंने कंपैरिजन कैसे किया कि यार, जैसे मैं एक कंपैरिजन करता हूँ, मैं पिछले 10 साल से यूबीएल की ऐप यूज कर रहा हूँ. एक दिन 1 मिनट मुझे 1 रुपए की कंप्लेन नहीं उस ऐप से. मेरा कभी 1 रुपया, एक पैसा इधर उधर नहीं हुआ. मुझे स्क्रीनशॉट आ गया. मैं दुबई इस्लामी बैंक में मेरी सैलरी आती है, मेरी फैसल बैंक में सैलरी आती है, मैं डरता हूँ पैसे ट्रांसफर करते हुए कि वो 2300 था. इमेजिन करें कि मेरे पास 3 लाख पड़ा हुआ है, मैंने किसी को 2.5 लाख देना है, और वो डू और डाई वाली पोजीशन, अब मैं कहाँ जाऊंगा? बैंक 60 days 90 days, you see, doesn't happen यार. मतलब मैंने यूज करना शुरू की थी बैंकिंग ऐप व्हेन आई वाज इन लंदन, और दैट टाइम दो आई वेंट, दुबई से गया था, लेकिन तब दुबई में भी ये बैंकिंग ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था. शॉर्ट कोड डाला आपने किसी को पे किया, दैट मींस कि जो हाथ से कैश दिया वही है वो. तो अनफॉर्चुनेटली, so basically जहाँ we were lending to Karyana, the biggest challenge was collecting the money back. But फिर I was in talks with Fatin and Adam. हमने जब ये पूरी वैल्यू चेन को ड्रॉ किया, इसका प्रोसेस देखा, so e-commerce में एक साइड है मार्केटिंग, bringing the customer to the checkout and he checking out.
ऑर्डर लैंड करने के बाद की जर्नी है ना, पोस्ट सेल्स। फिर एक पोस्ट सेल्स जर्नी है जो फुलफिलमेंट की है। असल प्रॉब्लम दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स नाउ। एक इनहेरेंटली वी आर अ सीओडी मार्केट, जिसके अंदर एक ब्रांड अपना कैपिटल 4 से लेकर 20 दिन तक इज गोइंग टू बी स्टक विद द कोरियर कंपनी, और सब स्टेक होल्डर स्टेक पे हैं, या सारे स्टेक होल्डर स्टेक पे हैं। हाँ, अब मैं आपको 1 मिनट की प्लीज इसको आप पिच समझें, बट समझा देती हूँ कि स्मार्ट लेन I think now we will talk about smart lane because हमने अब सब अपने सारी you get our backgrounds, right? Yes. So basically, yeah. So Smart Lane essentially is a B2B SaaS product that aims to optimize deliveries, fulfillment, and finances for e-commerce merchants. ठीक है? तो basically जो हमारा एक तो ये जो product है और ये जो solution हम लेके आए हैं, that's for e-commerce merchants. ठीक है? Now जो Smart Lane है, number one, when we say कि हम deliveries optimize करना चाहते हैं, there are many reasons behind that, right? One is that that's a pain point on its own. ठीक है? अभी आप एक brand है, ठीक है? Let's say आप ब्रांड उमेर एक्स है, ठीक है? आप मुझे खुद बताएं, आप कितने कुरियर कंपनीज के साथ काम कर रहे होंगे? आप मीडियम साइज ब्रांड तीन है, तो कम से कम, तीन तो कम से कम, राइट? अब तीन। ओके, रीजन बीइंग एरिया ऑफ सर्विस, राइट? डिलीवरी टाइमलाइंस, वो कॉस्ट, कंपैरिजन। अच्छा, मेरे लिए, मेरे जैसे बंदे के लिए कंपैरिजन, कंपटीशन, एफिशिएंसी एंड एरिया ऑफ डिलीवरी। एक तो मुझे ऐसा कुरियर चाहिए जो अफगानिस्तान भी कवर कर रहे हैं, एग्जैक्टली, रिमोट एरिया। एक मुझे ऐसा चाहिए जो मुझे बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा है और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तीसरा, मुझे एक जो नई कुरियर्स ने जगह बना ली, जैसे कोई भी एक या दो शहर वाला, आपको इंस्टेंट सीओडी दे देता है, और एक मुझे पैसे भी दे देता है कैश, तो वो सारा मिक्स करके तीन तो चाहिए। एग्जैक्टली, राइट? सो एवरीवन, वेदर आप एक छोटे इंस्टाग्राम सेलर हैं, या आप फेसबुक सेलर हैं, या आप एक शॉपिफाई सेलर हैं, या आप एक बहुत बड़ा ब्रांड या मार्केट प्लेस है, nobody is working with one courier company, right? That we have established, and we've established the reasons behind that too. ठीक है? अब what these brands are doing is 3 से लेके 5 courier companies के साथ काम कर रहे हैं। हर courier company के साथ आपको one-on-one integration करनी पड़ती है। Very good. ठीक है? Yes. आपको अपने orders हर अलग courier company के portal पे जाके upload करने पड़ते हैं। ठीक है? आपको अपने orders उधर से track करने पड़ते हैं। आपके customer service department को जब query आती है, उनको figure out करना होता है warehouse से कौन से courier ने जाके order उठाया, उस courier को call करनी होती है, figure out करना होता है कि कब पहुंचेगा, right? आप ये 3 से 5 जगह जितने पॉइंट्स बढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगी, आप काम रिपोर्टिंग भी बढ़ेगी, रिपोर्टिंग भी बढ़ गई, ठीक है? और हर कोरियर का अपना पोर्टल है, अपने जार्गन के साथ, स्टेटसेस भी आपके क्या कहते हैं वो नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। इंसान ने करना है तो गलती के चांसेस भी कोरियर के साथ आपने एक स्टेक होल्डर भी इंगेज होता है, आपकी फाइनेंस भी इंगेज हो रही है, कस्टमर सपोर्ट भी हो रही है, वेयरहाउस भी हो रही है। मैंने यही ना, जैसे ऑर्डर लैंड हुआ, ऑर्डर मूव हुआ, फाइनेंस आपका बिजनेस फाइनेंस भी, मेरा सर्विस प्रोवाइडर का फाइनेंस भी उसके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है, कस्टमर सर्विस वाला इन्वॉल्व हो गया, मार्केटियर इन्वॉल्व हो गया, यू नेम इट। आपकी शिपिंग की कॉस्ट 100 रुपए नहीं रही, अब आपकी शिपिंग की कॉस्ट 200 रुपए हो चुकी है। एक बात ये बताऊं, बिल्कुल एक बात, हमने 3 की बात की, मैंने रिसेंटली एक ब्रांड के जब पार्सल्स खोले ना, 5 6 दो कुरियर है। अभी मैं 2 पे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चले 2 कर लेते हैं। लिटरली मैंने एक को खोला, मैंने बोला यार 1000 पार्सल है, 700, उन्होंने बोला 750 हमने एक से भेजा है। मैंने वो खोल के देख लिया 250 को, मैंने कहा बस छोड़ दो यार, अब मैं उसका पोर्टल भी खोलूं, उसको भी देखूं। मैंने कहा मैंने जो आइडिया लेना था मैं 750 से देख लेता हूं, मेरा डिलीवर कितना हो रहा है, मेरा इन राउट कितना है, मेरा जो भी वो जो 3-4 मैकेनिज्म से देखने के लिए। तो ट्रूली मैं हैरान हूं कि जो भी बंदा किसी भी the other thing is that you know this as much as we do, that no courier service remains consistent. ठीक है? So basically 6 महीने पहले courier X was performing a certain way, आज courier Y is performing a certain way. ठीक है? इनका ये भी change होता रहता है, इनकी bandwidth, इनकी capacity, everything keeps changing, right? So that's what we noticed with our merchants. ठीक है? Number 1 was कि हम जब कह रहे थे ना कि हमने conversion points, हमने ज़्यादा convert करना है, so we realized कि हमने cancellations कम करनी है। फिर पहले जब शुरू हुआ था ज़माना, हर कोई सिर्फ TCS के साथ काम करता था, right? So what we started doing for one of our big brands was कि हमने कहा देखो, मैन्युअली हमने करते थे, नॉर्थ के ऑर्डर्स हम MNP को देते हैं, सेंट्रल के ऑर्डर्स हम कॉल कुरियर को देते हैं, साउथ के ऑर्डर्स हम TCS को देते हैं। We saw cancellation rates going down, ठीक है? So that's where it started ticking for us right from there. So today what we're doing with Smart Lane is कि on the courier end, we as a business, we're integrated with all the courier partners of the country. So we have our own deals with them, and we've made our own plugins. Either we've used their plugins or we've gone and made plugins with them. We're integrated with the entire courier network of the country.
एंड ऑन द अदर साइड हमारे पास प्लगइन्स हैं, चाहे आपका वूकॉमर्स का स्टोर हो, शॉपिफाई का हो, मैजेंटो का हो, या अगर आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम का है तो हम आपको CSV भी अपलोड करने देते हैं, ठीक है, या अगर आपकी मार्केट प्लेस है हम कस्टम APIs बिल्ड कर देंगे। तो बेसिकली इट्स अ प्लग एंड प्ले सोल्यूशन। हम मर्चेंट को कहते हैं कि देखें, इंस्टेड ऑफ यू चूजिंग योर कुरियर कि एक एक के साथ जाके इंटीग्रेशन करो, एक एक के साथ डील करो, इतना मेरा सेम सिटी का रेट है, इतना मेरा इसका रेट है, फिर जब आप अनहैप्पी हो जाते हो 3 महीने बाद फिर से जाके एक और कुरियर के साथ डील करो, वील गिव यू वन फ्लैट रेट, ठीक है। आप स्मार्टलेन के साथ चेकआउट पे इंटीग्रेट करें, जब आपका ऑर्डर लैंड होगा based on the delivery address of your parcel and based on our logic engine's historical data, हमारा सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा courier will be the best performing courier for your delivery on that specific date. What does that mean? The cheapest and the shortest in timeline. So we call this delivery optimization, right? Because basically, and the idea is, because it's going to be sent out of the 22 couriers that we have in our system, कि आज इस रूट पे बेस्ट परफॉर्मिंग कौन है, राइट? तो ऑर्डर टाइमली पहुंचेगा, कैंसिलेशन रेट्स आपके कम होंगे, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट अ फ्लैट रेट। यू ऑल्सो नो दिस दैट बिग ब्रांड्स को फर्क रेट्स मिलते हैं एज अपोज टू स्मॉल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सेलर्स। फॉर द सेम रूट एक कुरियर एक फेसबुक सेलर को 250 रुपीज चार्ज करेगा और एक बड़े ब्रांड को 100 रुपए चार्ज करेगा, राइट? बिकॉज वी हैव द वॉल्यूम्स विद अस, we can pass on that preferential rate even to the smaller brands, right? So we tell the brands ke because their deal is with you and yes, the businesses or brands deal is with you, and then what we also see so this is one of the edge, by the way, ye pro is, ye bahut bada pro hai, sahi hai. So the other thing that we saw happening was that sometimes brands were not choosing couriers based on their delivery timelines or on their service levels. They were choosing couriers based on their cost, ठीक है, कि ये मुझे सबसे सस्ता डिलीवरी करके दे रहा है जी, ये आपको 60 रुपए की डिलीवरी तो करके दे रहा है, लेकिन जब 10 दिन बाद आपकी डिलीवरी करेगा बिकॉज दे हैव अ चोक हुआ है कोरियर, वो तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डिलीवरी की कॉस्ट भी पड़ गई और आपने ऑर्डर भी लूज कर लिया। penny wise pound foolish for the merchant as well. So instead of going and explaining this one-on-one, we said we just have to put everyone on a level playing field, right? And we'll pass the order on to the best performing courier, ठीक है। So this was the low-hanging fruit for us because of our sort of what you call experience in e-commerce and our sort of knowledge of these merchants and brands and what they need. So we said हम इधर से start करेंगे। Step number 2 क्या होता है? We're bringing all of them onto one platform. ठीक है, single dashboard view आ गया। Regardless of your courier, finance की भी role आप उसी डैशबोर्ड में देखेगा, कस्टमर सर्विस भी उसी डैशबोर्ड में देखेगा और पर पैकेज वाइज रिकंसिलिएशन भी उसी डैशबोर्ड में होगी, जो इस वक्त मार्केट में कोई नहीं करके दे रहा। लोग कहते हैं वो कर रहे हैं, शायद एक कुरियर, आई एम नॉट श्योर अगर वो कर रहे हैं, लेकिन एक कुरियर का हमने सुना है जो करता है पर पैकेज वाइज रिकंसिलिएशन। वो सब आपका सिंगुलर डैशबोर्ड से हो रहा है। व्हाट इज दिस पैकेज वाइज रिकंसिलिएशन? सो पहले आई विल एक्सप्लेन। पहले अगर आप कुरियर के साथ काम कर रहे हैं तो कुरियर आपको एक इनवॉइस इशू करता है। This is the parcel डिलीवर हो गया, लाख रुपए का मैंने सीओडी पकड़ लिया, टैक्स भी काट लिया, अपने और मैंने इतने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, 80,000 मैंने आपके अकाउंट में डाल दिया। So what we did, we created a closed loop wallet कि यार ये आपका पैकेज डिलीवर हो गया, इसके 100 रुपए बनते हैं, वो आपके वॉलेट में आ गए, आप कभी भी निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि मुझे अब कंफर्मेशन मिल चुकी हुई है कि वो उसको प्लस कर रहा है, 100 पार्सल्स को प्लस करके दिखा रहा है। हर पार्सल की एक इंडिविजुअल अमाउंट नहीं दिखा रहा, आपने हर पार्सल की इंडिविजुअल। और फिर आपकी फाइनेंस टीम बैठ के महीनों सर बस बैठी रहती है कि वो पैकेजेस रिकंसाइल कर रही होती है और वो नहीं हो पाते। इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। सो व्हाट वी डू, हम फिर अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, आपका शॉपिफाई है तो शॉपिफाई पे भी अपडेट हो जाएगा कि ये पैकेज डिलीवर हो गया, और उसके पैसे जब आप विड्रॉ करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म में से तो वो उधर अपडेट भी कर देगा, इट्स सेटल्ड। ओके, सो हियर कम्स यू कि बेसिकली अगर मैं एक उमेर ब्रांड स्मार्ट लेन ऑनबोर्ड करता हूं तो ये जो पोस्ट ऑर्डर और पोस्ट सेल्स के सारे मैकेनिज्म तो हो गया, तो पैसे आप ले रहे हैं कुरियर से लेके, तो फिर आप मुझे दे रहे हैं। yes. अच्छा, तो मुझे वो 5-6 कुरियर से लेना, बैंकों में डालना, देखना आए नहीं आए, तो आए। इधर comes the second offering of Smartlean. So the first pain point is हमने आपकी डिलीवरी ऑप्टिमाइज कर दी, ठीक है, और सिंगल डैशबोर्ड में लेके आ गए, मल्टीपल कुरियर्स के साथ सब कुछ। तो ये एक पेन पॉइंट है जो हम वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो लोग कभी हमें कहते हैं आप सिर्फ ये क्यों नहीं कर रहे, आप दूसरा फिनटेक साइड भी क्यों कर रहे हैं? सो इन बिकॉज वन इज अ मींस टू एन एंड,
right? So this is where we collect our data from. जब हम checkout पे integrated होंगे, हम जब आपका delivery का data देखेंगे, हम आपके revenue देखेंगे, हमें जब पता होगा कि exactly कितनी deliveries successful है, कितने returns हैं, कितने cancellations हैं, उसी के basis पे हम आपको किसी भी किस्म की lending कर सकेंगे, right? Whether it's instant COD or revenue based financing, ये दो किस्म की हम lending करते हैं, right? Which obviously is something that we couldn't have done or ringfest without Umar coming on board. हाँ, ये तो हार्डकोर पैसे की बात है ना, जी, तो क्योंकि जैसे वो टेक्नोलॉजी में तो आपने और प्रोसेसेस में तो वो भी थे, आप भी थे. हाँ, so So Umar, COD why don't you lending के explain अंदर COD lending a what little? we हाँ. do is as soon as आपका पैकेज हमारे पास लैंड किया, ऑर्डर लैंड किया, सपोज हमारे सिस्टम ने उसको कोरियर कंपनी TCS के साथ बुक कर दिया. When TCS comes to your warehouse, pick it up, वो स्कैन करता है उस पैकेज Dispatch को. पे. तो वो जैसे ही स्कैन करता है, our system knows that this is now in possession with the courier partner. So we give 80% of the package value into their wallet right there and then of the customer. अगर 10,000 का पार्सल है तो 8,000 आप उसी टाइम मेरे उसी wallet में टाइम डाल आपको देंगे. दे दूंगा. So And I can withdraw it. you can withdraw it. And And if it's returned, then you will adjust it. that's why we give 80%. 80% ना, And 20% is that 20 buffer. 20% is the buffer. हमारे दो KPIs हैं. So is this available for everyone? Because Everyone. I think Everyone. But after you've passed a certain level of certain level So obviously आप ना. मतलब कि instant COD is आप 10 working days हमारे साथ काम कर लेते हो. We have an idea what is your return ratios, what is your how does your delivery timeline looks, how soon you pack it up, how soon आप dispatch करते हो. Based on those parameters, our system decides कि यार इसको 80% देना है, 85 देना है, 90 देना है, 75 देना है, कितना देना है. So that's a risk mechanism that's digital completely. तो एक तो lending वाला भी फायदा हो गया. Yeah, and you know the thing is that when we speak to merchants, we see some of the best performing couriers still in the market in terms of delivery success ratio are the ones जिनकी instant COD नहीं है. ठीक है, a lot of the younger couriers have instant COD. TCS, Leopards are still some of the best performing couriers in terms of delivery ratio. And then we see brands choosing not to deliver with them just because उनको instant COD नहीं मिल रही, right? Or we see brands choosing another courier because it's cheaper or there's instant COD. They all have a mix and match. And they all have their strong points. They all have their weak points. So what we say is that let us put you on a level playing field. Yeah. So you are in the industry from quite a while. How many courier companies are there in the market? Are there? In the market right now. अभी मेरे ख्याल से जो होंगी ज्यादा, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ 10 से 15 तो हैं. There are 20 plus at this point of time. अच्छा, yes. So we are integrated with the complete 20 plus. So when we build the product, हम लोग एक चीज पे बहुत clear थे कि हम अपनी fleet कभी नहीं बनाएंगे. We are a neutral platform. We'll stay a neutral platform. And हमारा काम है, we are the market makers between the e-commerce merchants and the delivery courier companies that are coming दोनों in. को फायदा. कि we are not competing with any one हाँ, of सब them. तो नहीं करना है ना, मतलब वो Yeah. नहीं कर सकते. So there are one or two courier companies that sometimes merchants compare us to ना. They say कि ओ आप courier company X हैं या Y कितना है, वो भी instant COD देते हैं. But like वो दें आपको, वो उनकी मर्जी है. अगर उन्हें करना है, वो instant COD नहीं होती, वो एक किस्म की pre-packaged booking होती है So- उनके साथ. But we love courier partners because they're our partners. Without them, we can't do this. The more, the merrier. So when we hear of new, younger players coming in, we're happy, right? Because whoever is performing well, हमारी तरफ से उनको order जाएंगे. We will never operate our own fleet. We want to be the middleman, layer in between, right? जो गैप Passing- आपने टैब बेसिकली जो गैप एनालिसिस करके जो आपने गैप को आइडेंटिफाई किया, उसी को आप वो लूप होल्स को जो है Exactly. वो आप फुलफिल करें. उसके लिए जरूरी नहीं है कि राइडर भी अपने ले लेने, बाइक्स भी अपनी ले लेनी, ये भी ले लेना. We don't want to be And- everything for और everybody. बात उधर ही आ जाती है कि no one is working with one courier partner. ये तो They are आपने- working ये तो with क्लियर हो गया ना. Yeah. they are working with multiple. देखें, तो हम कह रहे हैं कि आप हमारे self साथ- क्यों लेंगे while working separately? एक ही डैशबोर्ड से काम करें सबके एक ही साथ. कंपनी के साथ काम करें. We manage your fulfillment. हमारा KPI है. So for many of the brands, जिस तरह Adam was telling you earlier as well, we have decreased their return ratios by 60%. Just from the fact कि not with ऑप्टिमाइजेशन से और ऑटोमेशन से. Yeah, route optimization, optimization. automation से we have decreased that. और फिर कैश फ्लोज भी इनके improve किए हैं. फिर इनका कोरियर का एक अपना इकोसिस्टम है. इकोसिस्टम टू अ पॉइंट के राइडर जो है, आज राइडर ए इज कोरियर कंपनी ए के साथ, कल वो राइडर ए कोरियर कंपनी बी के साथ है. अब राइडर लेवल पे जब आप परफॉर्मेंस देखते हो ना, तो दे आर नॉट गोइंग टू डू 100% डिलीवरी अटेम्प्ट.
कोई 90% कर रहा होगा, कोई 95% कर रहा होगा, so you know कि if this rider has gone from courier A to courier B, इसकी performance effect होने वाली है. मैं अभी रिसेंटली व्हाट हैपेंड के मैंने दिसंबर में एक इवेंट करवाया ई-कॉमर्स समिट पीसी में. Okay. तो वो करवा के मैं वहाँ से आता हूँ, तो उन दिनों मेरी जो पोस्टिंग थी वो बहुत रैपिडली तेज चल रही थी. लाइक आई वाज पोस्टिंग ऑन माय सोशल मीडिया, 25-30 स्टोरीज डेली लगा रहा था. तो 24 मार्च को जब मैं घर 24 दिसंबर को जब मैं घर बैठा हूँ, तो एक खातून है, वो शी हैपन्स टू बी एन इन्फ्लुएंसर मेरे ख्याल से, बट छोटे लेवल की. मैं देखता हूँ somebody tagged me, मैं खोलता हूँ उस पर, शी इज़ cursing the courier service के what happened कि that she placed an order on a brand, पार्सल पिक होता है, कस्टमर को मैसेज आता है, पार्सल आ जाता है कुरियर के वेयर हाउस में. 25 दिसंबर की बात है, 24 की नहीं. 25 दिसंबर को तो मेरे ख्याल से पब्लिक हॉलीडे था. तो somebody comes, the original actual parcel is sitting in the warehouse. Somebody comes to their door on that day, बेल बजाई, पार्सल दिया, 32,000 रुपया लेके चला गया. जब वो पार्सल खोलते हैं तो पार्सल के अंदर से एक गीला ब्लैंकेट ये वो निकलता है. गीला ब्लैंकेट, हाँ? सूखा हुआ भी नहीं. हाँ, गीला वाला थोड़ा वजन है ना, तो इसीलिए सही है. तो शी स्टार्ट्स कर्सिंग लॉजिस्टिक. अच्छा, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था. ताल्लुक ये था कि उस ब्रांड को सर्विस में प्रोवाइड करता था. तो शी टैग्ड मी, और उसने फिर एक और आप ही की तरह का एक प्रोडक्ट है जिसके थ्रू ऑर्डर मूव होता है, तो उसको भी मैं टैग कर रहा था, तो इसलिए उसने उसको भी टैग कर दिया. मैंने बोला चलो लेट्स जंप इन. फारिग तक घर बैठा होता, मैंने जंप इन किया. मैंने उस लॉजिस्टिक्स वाले को कॉल किया. उन्होंने बोला यार मेरे भाई ओरिजिनल पार्सल तो हमारे पास पड़ा है, ब्रांड कह रहे हैं हमने लॉजिस्टिक्स को दे दिया, वो जाने उस काम जाने. मैंने कहा नहीं यार, आपका भी तो कस्टमर है, कह रहे हैं तो हम तो पैसे पूरे लेंगे. I know, like it is, इसमें logistics companies की भी बेचारों की गलती नहीं होती. नहीं है. I mean, yeah. लेकिन देखिए somebody has to take the blame. एंड Yes. यूजर तो देखिए, एंड यूजर ऊपर से सोशल मीडिया पे आ गया. Yes. Yeah. Yep. ठीक है, आप नाके के ऊपर रुके, पुलिस से सलाम करें, आप एटीट्यूड देखना, आप इसको ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड साथ रख के आप देखें तो आप उसका रिस्पांस देखना, चेंज हो जाता है. She started doing this. अच्छा, मैं I was curious कि यार ये डाटा कहाँ से लीक हो रहा है, कहीं से तो हो रहा है. Yeah. करते यार इट्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली. जहाँ से आपने राइडर की बात की, राइडर ए आता है, अब 50 पार्सल 100 पार्सल पड़े हुए. अब एक कुरियर ए के 80 पार्सल है, 20 कुरियर बी के, लेकिन पड़े हुए तो 100 एक ही जगह है. वो क्या करता है, वो पार्सल उठाता है, उठा के कहता है ओहो ये तो मेरा ही नहीं है, उसने तस्वीर ले ली है. Yeah. वो तस्वीर वहीं से आगे व्हाट्सएप कर देता है, पार्सल रेडी हो जाता है, पार्सल जाके अगले बंदे के. तो जो पार्सल वो लेने आया वो उसके साथ नहीं कर रहा है इनकी बैंकी. Yeah. तो जैसे कि समझ गया मेरी बात, जैसे कि I mean, riders को blacklist कौन करेगा? लेकिन उस लॉजिस्टिक जिसके साथ ये हुआ, मुझे उसका एक आइडिया बहुत अच्छा लगा. उसके साथ 10, 15, 20, 25 पार्सल्स के साथ इस तरह होना शुरू हो गया. इट्स एन अमाउंट 30,000 का 5 पार्सल भी निकल जाएगा 1.5 लाख. तो उसने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ की. उसने बोला मैंने एक काम किया. मैंने कहा क्या किया है? उस लॉजिस्टिक्स ने ये किया है कि उसने COD अमाउंट उड़ा दी है स्लिप से. असल तो घपला सारा मसला ही COD अमाउंट का है ना. जब आप तस्वीर लोगे तो आपको पता चल जाएगा 30,000 का पार्सल है, अमाउंट ही नहीं पता होगी, आप पार्सल की तस्वीर भी ले लोगे तो कैसे जाके लोगे. तो मुझे बड़ी अच्छी एक इनिशिएटिव लगा उस लॉजिस्टिक्स का कि So yeah, we face similar things in the start as well. We can give you an example. पहले CN slip के ऊपर we used to place smart lane का logo. ठीक है, कि जो courier जो ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है आपकी ठीक है, जो courier और smart lane. So सही है. what we started seeing is that our parcels started getting delayed. So randomly we decided smart lane, let's get the smart lane logo out and let the courier logo stay. And the parcels started getting delivered faster. And why is this? Now this is in the chain that someone is against you or someone wants that smart lane के parcels delay. So when ये unfortunately हमारा culture ही यही है. yeah, And it's Not with usually all the not- couriers. Not with and all by the the way, couriers. it's not usually from top up, right? Because like I said, we are founders, they are founders, we're all from the same ecosystem. So when we sit and talk, everyone understands that the pie is big enough and that here we're trying to optimize, sort of what they're doing and they're our partners. So usually it's from somewhere in the middle of the Yeah, chain. It's never, एक तो देखें मार्केट में जितने भी हेड ऑफ ई कॉमर्स की बात करूंगा मैं, जितने भी हेड ऑफ मैं कराची जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जितने भी हेड ऑफ ई कॉमर्स मार्केट में है,
सारे के सारे TCS से निकले हुए, Yeah. मेजोरिटी ऑफ देम। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे बड़े दोस्त हैं, उमर मुबीन, हैदर अहमद काजी, मलिक साजिद रियाज, पता नहीं वो बच्चा पार्टी के हेड ऑफ ई-कॉमर्स हैं, इबादुल सलाम, मतलब बड़े अच्छे लोग जो हैं सारे निकले कुरियर से हैं। Yeah. तो एक तो जो बंदा कुरियर की मार खा लेता है तो वो जो है ना वो पूरा सही जो है वो Veteran हो जाता है। हाँ So that's our idea. We started giving them instant COD. Then based on that, we said we'll give you longer tenure loans as well. Longer tenure up to 90 days. Based on your past 90-day sales, we'll see what your average daily sales is. Based on that, which sector you're performing in, what's the profitability of that sector. Based on that, we'll give you a loan. For example, आप 100 rupees की sales कर रहे हो on a daily basis. For चलो 100 rupees की sales कर रहे हो in a month. We know you are operating in fashion sector. You would have net margins of 25 to 30%. So I can lend you 25 rupees or 14 rupees, which you can easily give me back in a month's time. Because आप अपने margin में से 50% की installment मुझे वापस देखिए दे एक सकते एडम हो। सर्विस है ना कि जहाँ मेरा पैसा आता है मंगल और जुम्मे को, वहाँ मुझे एक बात पता है कि अब मेरा पैसा मेरे बटन के ऊपर है। लेट्स सपोज कि मुझे अपना ही पैसे किसी से मांगने से अच्छा है मैं आप ही से ये पैसे तो आपकी instant COD ये हो instant गई, ये तो COD. instant COD This is COD revenue है, based finance. ठीक है। अब we're talking about revenue based कि financing, आपको ठीक है। अपने जो packages आपने अगली production करानी है, हाँ, उसके लिए पैसा चाहिए। उसके लिए पैसा चाहिए। example, तो on you're basis of my relationship Yeah. and the business we are doing with Smart Lane, Yeah. Yeah, you so finance it. basically you're a merchant, ठीक है, you're a medium-sized merchant. You need working capital. Who's going to give it to you? Who? The A banks bank? are not going to give No it to you. bank's going to give it क्योंकि to नया you. हूँ ना, अभी तो कोई भी नहीं देगा। नहीं, पुराने भी आप थोड़े हो जाए, ठीक है। फिर भी कोई बैंक आपको नहीं हाथ हाँ, लगाएगा ये without क्योंकि वो- collateral. वो Collateral मांगेंगे। Collateral मांगेंगे ना। कोलैटरल भी मांगेगा और उसके बाद जो Collateral जितना तो मेरा मांगेगा। प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं जितना मुझे उसको तो और revenue time जो लेगा। हमारा और running revenue finance तो है yeah, नहीं। जो हमारा revenue based financing है, right? So the idea is because again Smart Lane is integrated on your checkout, we have a view of your revenue, of your deliveries, of your cancellations, of your returns, right? Based on that, we have a digital credit risk assessment system. We have a digital ledger, ठीक है? हम decide करते हैं what line are you eligible for, ठीक है? उसके basis पे we lend you that money and you can use that either for your next production or for your marketing, ठीक है? Basically to grow your e-store more, right? है। So that's what we do that, and these are 30, 60 or 90-day loans, and like it's not. It's like आपने 100 rupees दिए कोई हैं। वही हो गया ना, हाँ। BNPL ही हो गया ना, मतलब एक लिमिट आपने रख दी कि उसको इंक्रीज ना हो। आई मीन टेन्योर की बात कर रहा हूँ। No, Yeah, it's- tenure, no. BNPL नहीं, नहीं yeah. नहीं देखिए कोई भी बाय नाउ पे लेटर 3 महीने से मैक्स 6 महीने से ऊपर नहीं है, तो ये लोन भी जो आप लोगों को दे रहे हैं तो वो भी बेसिकली 3-4 महीने So के But this- buy now this- pay later is B2C, right? So in a way, this is like B2B. It's more Yes, like yes, working yes. I'm not capital. mixing it. So B2B man, हाँ, this हाँ, is like a evergreen credit line you get. यस So you आपको 100 रुपए की क्रेडिट लाइन अवेलेबल है हर टाइम आपके पास, जो Yes. हमारे सिस्टम ने अलॉट कर दी है। यस नाउ आप कहते हो कि यार मैं 100 रुपया आज ले लेता हूँ पूरा, या मैं 10 आज ले लेता हूँ, 20 कल ले लेता हूँ, 30 परसों ले लेता हूँ, इसका जैसे करके बैंक्स में आज से पहले, अभी शायद है नहीं, आई डोंट नो, 10 साल पहले तक तो हम रनिंग फाइनेंस लाइन दिया करते Yeah. थे जिससे पेट्रोल पंप्स वालों को, या ठीक है, कि उन्होंने पेट्रोल लेना होता था, हमें पता था इसका डेली 24 घंटे 48 घंटे बाद आएगा, वो पे ऑर्डर बनाने आते थे, हमने उनको पे ऑर्डर की जगह एक फैसिलिटी दे दी रनिंग फाइनेंस की। सो दिस इज द सेम Basically, Same वही model basically, है, हाँ। Umair bhai, like our entire thesis is that whether it's delivery optimization, whether it's instant COD, revenue-based financing, it all stems from data, right? Yes. We want to lend based on actual data. We want to optimize based on actual मैं data. आपको जब- Data is our key. Yes. There are other people in the market who may lend. उनके NPL ज़्यादा होते हैं, right? But that Because- is just on the basis of that model might exist भी करे नहीं करे पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपने देखें you could have done easily, आप उम्र को लाना और उम्र के साथ बैठना फिर उम्र के साथ काम करना का रीजन ये था कि लॉन्ग टर्म एंड कॉर्पोरेट सोच, Yes. कि ये आप और आदम भी कर सकते थे कि भाई ठीक है आपको पता है यार 100 मेरा मैं खाड़ी है उसको मैं दे देती हूँ 10 करोड़, मैं सफायर है मैं 5 करोड़ दे देती हूँ, मैं निशाद है 2 करोड़ दे देती हूँ। और फिर मैं फंस जाऊँ हाँ, क्योंकि ठीक है। जैसे एक मुझे वापस ना दे। हाँ अच्छा, और दिया तो क्यों दिया? अब आ जाती है बात फंडिंग की, जैसे कि मैं आया मैंने बोला ठीक है मैं आप लोगों को फंड करता हूँ, लेकिन जब मेरे जैसा बंदा जो एक VC होगा वो देखेगा ये कर क्या रहे हैं। लेकिन लोग करते हैं ऐसे। हाँ, लोग करते हैं, वो इसीलिए वो मॉडल नहीं कामयाब ना, हाँ, लेकिन वो नहीं मैं कामयाब। इट्स इजी मनी ना, वो तो- क्योंकि आप बड़े बड़े टिकट साइज का दे दो, ठीक है, आप उस पर रिटर्न भी बना रहे हो। We want to lend to the small and medium enterprises who actually have
जो कदर भी करते हैं उस पैसे की, So, हमारा because average they don't ticket have size access जो to that है- money, तो वो कदर भी करते और हैं. देखिए आपको भी पता है ना, कल को उठ के आप भी मुझे नहीं कह सकते कि फैन वर्किंग विद स्मार्टलैंड के हमने आपको पैसा दिया था, बिकॉज इस मॉडल में कोई एहसान नहीं है. एहसान मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी हिस्ट्री, अपनी Yes. क्रेडिट हिस्ट्री आपके साथ बनाई है. या कि Yes. मैंने 10 करोड़ का बिजनेस किया 6 महीने में, तो Yeah, तब yeah. जाके आपके सिस्टम ने कहा आप इसको करोड़ दे दे, दे दे। Exactly. या- क्योंकि मैंने भी इसे Yes. 2 करोड़ कमा लिया ना, या- जी. तो आप भी कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ, तो Yes. इसमें कोई और एहसान जितना नहीं आप है. ज्यादा कमाएंगे उतनी आपकी डिलीवरीज बढ़ेंगी, उतना हमारा बाकी तो भी देखिए business- इसमें ये हो जाएगा ना कि मुझे जब पता है ना कि यार ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो फिर इसमें ना लॉन्जिविटी भी आ जाती है ना. द मोर आई डू बिजनेस विद यू, द मोर आई वर्क विद यू, दैट क्रिएट्स माय गुड क्रेडिट हिस्ट्री, एंड मे बी आई वांट टू जो- एक्सपैंड. मैंने एक रिटेल स्टोर खोलना, मैं कहता हूं आदम, And बिल्कुल और ऐसे हम ही। चाहेंगे कि जो लोग लैंड करना भी चाहते हैं ना, जिनके लिए मुश्किल है लैंड करना, वो भी फिर हमारे थ्रू लैंड कर सकते हैं आगे टू So, ई-कॉमर्स the idea is कि हमारे पास अनलिमिटेड कैपिटल तो है नहीं कि हर किसी को हम अपनी किताब से पैसे देते रहे. और देखिए खुशी ये होती है, मैं आगे जब बात स्टार्ट हुई थी मैं बोलने वाला था, फिर अभी जब फातिन ने बात की कि जब डाटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज होती है ना, तो बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों के साथ, ऐसी फर्म के साथ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऐसे लोगों के साथ काम करते हुए. आई वाज वेरी वीक इन रिपोर्टिंग, व्हेन इट कम्स टू रिपोर्टिंग. मुझे ऐसे लगता था कि बल्कि अब मैं जब काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं यूथ को भी जब बात करता हूँ कहीं पे जाके, तो मैं ये बात बोलता हूँ कि हमारे दिमाग में क्या आता है, रिपोर्ट जैसे हमारे दिमाग में क्या आता है. जब मैं दुबई से लंदन गया तो मैं इंग्लिश बहुत तेज बोलता था, ठीक है, तो मुझे क्या लगता था तेज बोलना, फर बोलना इंग्लिश है. तो मुझे एक मेरे दोस्त ने बोला, उसने बोला यार ब्रो थोड़ा सा स्लो करके बोलो. फर बोलने का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम इंग्लिश के कोई किंग पेन हो गए हो. या रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि मैंने सुबह रिपोर्ट देनी है अपने सीईओ को या सी लेवल किसी को भी रिपोर्ट देनी है तो इट हैज टू बी लुक लाइक करीना कपूर और करिश्मा कपूर. नहीं, रिपोर्ट का मतलब क्या है कि जो बात करने का रीजन है आप दिखा सको. सही है. कि हो अच्छा, गया. हमारे यार फिर जैसे- आपके ब्रांड्स तो सारे स्मार्ट लाइन पे आ रहे हैं, मिस यू इस कॉन्वर्सेशन के बाद यार अच्छा, so आदम is the king of reporting, ठीक है. मैं- आदम को आई थिंक जितना शौक आदम को है रिपोर्ट्स का और हर चीज की एक रिपोर्ट, देखिए कोई भी ब्रांड जो है ना स्मार्ट लाइन पे भी आ जाएगा, स्मार्ट लाइन जैसे प्रोडक्ट के ऊपर भी आ जाएगा. ये डाटा को जब स्टडी करके डिसीजन लेगा. या- हमारी मार्केट की इंडस्ट्री है फातिन, हमारा आज भी हमारा ई कॉमर्स पता है किसके ऊपर चल रहा है. हमारा ई कॉमर्स बिहेव कर रहा है बैंक की तरह. उमैर अरशद इज द ब्रांच मैनेजर ऑफ HBL, फातिन का 10 करोड़ वहां पड़ा हुआ है. ऐसे ही। उमैर अरशद वहां से उठ के चला गया फैसल बैंक में, फातिन का 10 करोड़ वहां चला गया. ऐसे ही। ब्रांच मैनेजर मूव कर रहे हैं और वो पैसे भी साथ साथ वो मूव कर रहे logistics के हैं. साथ वो साथ delivery- फातिन ये नहीं देख पा रही कि वो टनल विजन है ना, कि वो टनल विजन में देख ही नहीं पा रही कि यार इस बैंक से मुझे ज्यादा फायदा था. नहीं, उमैर के साथ रिलेशनशिप ज्यादा मैटर करता है. या हमारे डिसीजंस किस बेस पे हो रहे हैं या कि आपने हेड ऑफ ई कॉमर्स रखना है, आपने आदम को कॉल किया यार कोई अच्छे से बंदा तो हाँ दे दे. जी। आदम ने बोला यार उमैर रख ले, बहुत अच्छा है. मैंने फैसला ही नहीं किया कि उमैर अच्छा, एक है उमैर अच्छा है या नहीं, फिर एक ये कि उमैर मेरे मॉडल में फिट होता है नहीं होता है. या Because यार ये होता है कि वो कहते हैं कंपनी नहीं यार आपकी कंपनी के साथ काम नहीं करना. लिटरली 15 दिन बाद वो बंदा जो उनके लिए काम करा था वो हायर करेंगे और वो कहेंगे बहुत अच्छा चल रहा है बहुत सब अच्छा कुछ. चल रहा है. सही है. अच्छा समटाइम्स हम इतने इगोइस्टिक हैं कि अगर आदम ने मना किया कि फातिन को नहीं रखना, मैंने रख लिया, तो अब मुझे पता है मेरा डिसीजन गलत हो गया. नहीं, बड़ा मजा आ रहा है. हाँ, बहुत अच्छा है जी, बहुत No, बहुत मैं अच्छा. आपको एक funny मजे का वाक्य सुनाऊं. So this is pre Smart Lane. जब हम वेबवर्क्स में थे, so one of our biggest brands, okay, वो हमें छोड़ के किसी एजेंसी के पास नहीं गए थे, वो एक बहुत बड़े मशहूर इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हाउस के पास गए थे, ठीक है. तो उनसे तो उनने हमें बोल दिया था कि देखिए हम compete ही नहीं कर सकते ना, कि ये जो हमें ग्लोबल लेवल पे सर्विसेज देंगे, ये सब चले हम नहीं compete कर सकते. उनके 10 और मुल्कों में ऑफिसेज हैं, पता नहीं कहाँ से बाहर एक्सपर्ट्स लेके आ रहे हैं आपको ये बनाने के लिए. एक हफ्ते बाद हमारे 2 डेवलपर्स हमें छोड़ के चले गए, बिकॉज उसी सॉफ्टवेयर हाउस ने उसी वेबसाइट पे काम कराने के Yeah. लिए हाँ, हमारी 2 डेवलपर्स लिए थे जो और वो- हमारी एजेंसी और जो उन्होंने डेवलपमेंट की हुई थी अपने मैं- वही यूज कर ली. बिल्कुल. देखिए एफर्ट नहीं करनी ना. सो वो 2 लाख रुपए एक टाइम ज्यादा था एल्केमेटिव बनाता था. एल्केमेटिव के बाद शॉपिफाई डेवलपर 6 महीने काम करता था. उसके बाद टेक्सल उठा के लेके जाता था, उसको टेक्सल बैठ के वेट कर रहा होता था, ये फातिन है, इसको 3 महीने हो गए, इसको 6 महीने हो गए, ओके अब उठा लो. टेक्सल उठा के ले जाता था, वो टेक्सल काम करते थे. साल हो जाता था जब उसको अब सिस्टम्स बैठा हुआ होता था, वो देख रहा होता था कि यार सिस्टम सबसे end में तो system से सिस्टम्स है, बैठा होता है, सबसे वो ज्यादा सिस्टम वही pay हाँ. करता और लिटरली मैं एक ऐसा को 50 बंदों का बैच जिन्होंने मेरे साथ काम स्टार्ट किया, इवेंचुअली वो सारे जाके अब सिस्टम्स बैठे हुए, वो ये रूट बन गया था और सबको समझ आ गई थी कि रूट यही है. बट गुड फॉर यू नो व्हाट, इट्स डेवलपर्स के लिए तो अच्छा है. डेवलपर्स लेकिन देखिए फिर आप, मैं कहता हूँ आप हिपोक्रेट कैसे हो सकते हैं. हाँ. आप एक्सेप्ट करें ये कि मैं अगर वेबवर्क्स को छोड़ के या स्मार्ट लाइन को छोड़ के मैं
माइक्रोसॉफ्ट के पास जा रहा हूँ, तो फिर मेरे अगेन वही बात आ गई ना कि मेरा डिसीजन ऐसा हो कि ओके आदम, आई वांट टू वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज दी व्हाट आई वांट एंड माय विजन इज दिस, दैट मैं इसके साथ अलाइंड हूँ. ये नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट भी फिर वेबवर्क्स की 2 डेवलपर्स उठा के आपका काम बस अंडर ये अ डिफरेंट हो क्या रहा है? मच बिगर प्राइस टैग, बट देखिए दो चीजों पे कस्टमर मूव करता है, एक प्राइस है, प्राइस इलास्टिक की मार्केट है, वो तो चेंज नहीं होगा. सेकंड ईगो, दो चीजों पे कि आप मैंने प्रोजेक्ट करना है अपने आप को या प्राइस कम मिल रही है, इन दो चीजों इवेंचुअली होना क्या है, Value आई डोंट नो different द नेम ऑफ द कंट्री, बट दैट कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस, आई थिंक इट्स यूएसए और आई डोंट नो, कि आप कोई भी जिस तरह माइकल कोस, शनेल या ये एलवी गुची के जो बैग्स होते हैं, अब आप लेके अगर हमारी कंट्री में आएंगे, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग विद इट, यू विल शो द ओरिजिनल रिसीट ऑफ इट. अब हो क्या रहा है? सही, यस सही हो गया. अब होना ये है हमारी इंडस्ट्री में कि इतनी चीजें जो फेक वाली हम लेके घूम रहे थे. अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अब जनवरी में ना अपने दिमाग में एक आइडिया लगाया था कि जिस 6 महीने में छांटी होनी है ब्रांड्स की भी, बिजनेसेस, नॉट ब्रांड्स नहीं, बिजनेसेस की छांटी हो जानी है. ये जो आता था ना, बंदा आता था और सीधा आके एक लॉन की कलेक्शन निकालता था, अपलोड करता था, उसके बाद बेचता था, फिर चला जाता था, फिर आता था, ये सब फिनिश टॉपी ड्रामा. वो लोगों का जो लोग को, अच्छा कोविड को मैं ऐसे लेता हूँ कि कोविड के जो 3 साल के पीरियड के एडवर्टाइजर्स को भी, कंपनीज को भी, सबको, आप समुद्र के कोने पे थे, सुनामी आया, व्हाट्सोएवर आया, वो उठा के आपको सेंटर पे ले गया. आपको तैरना तो नहीं आता क्योंकि आप चले गए फ्लो में. अब आप पानी रुक गया है, अब आपको तैर के वापस आना है. अब लोग तैर के आ नहीं पा रहे, फंस गए ना, क्योंकि वो तो जर्नी नहीं की ना तैरने वाली. आई नो बट I would also say मैंने I think brands को और businesses के लिहाज से भी उनके एंगल से आप सोचें तो I think some of the decisions that they make also make sense because a lot of the companies also are not dependable. ये भी एक इशू है. तो वो ये कहते हैं कि यार मेरे पास ये बंदा है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, ये डिपेंडेबल, अगर इसको मैं खुद रख लूँ, बिकॉज कंपनीज के साथ ये हुआ है, लॉजिस्टिक्स में भी, ई कॉमर्स में भी, और भी कंपनीज. I think it goes both ways. It does go both ways. ये वाला फॉर्मूला हर जगह लगा हुआ है ना. देखिए मैं कहता हूँ, I think I'll tell you what it comes down to. It goes both ways, but unfortunately, out of my 11 years of working in Pakistan, 11, 12, जितने भी हो गए हैं, the only thing that saddens me a little is that companies here cannot see each other grow and they cannot enjoy and sort of partake in someone else's growth with them, right? Yes. Which is I think that's the one thing that saddens me the most, right? In other parts of the world, if you are doing well as brand Umair X and you have someone that does something for you and they are doing well because they're working with you, you know, you'll both grow, right? In Pakistan, unfortunately, it's a bit more like, you know, I'm the one growing. This person's growing because of me. Let me cut their legs. People will not put up a post, not one single post of admiring their partner, whether it's tech, logistics. मैं आगे एक बात करने that I लगा था, think is मेरी बात also- वो फिर बात कट गई. मैंने कहा चले अब तो बात वो आ गई जो फातिन ने की है. देखें, इजीली हम कहते हैं कि हम एक दूसरे के कंपिटिटर्स एज इन बिजनेस, एज इन पीपल बन जाते हैं. आई थिंक इट्स इलॉजिकल. अभी हम जिस इंडस्ट्री, हमारी पूरी इंडस्ट्री जहाँ खड़ी हुई है, जिसमें स्मार्ट लेन भी है, जिसमें XYZ सारे, हम एक दूसरे के कंपिटिटर नहीं है, एटलीस्ट अभी नहीं है. क्यों यार? आप इंडिया देखें, आप चाइना देखें, आप इंडोनेशिया देखें, उसका 10% तो अचीव कर लो मिलके, फिर कंपटीशन कर लेना. नहीं देखें, क्या है? हम में से कोई भी यार 5-5 मिलियन उम्र, 5-5 मिलियन, 3-3 मिलियन की इनवॉइस एजेंसियों की, और वो कह रहे हैं कि फलाना हमारा कंपटीशन है. यार आपकी कंपनीज तो ऐसे मॉडल पे बिहेव कर रही है, वो सैलरीड पर्सन है. अब मेरी सैलरी 1 तारीख को आती है, 10 को मैं उड़ा चुका, वो तो ठीक हो गया. कंपनी भी यही है, कंपनी भी सारे पैसे इकट्ठे करके इनवॉइस लोगों की क्लियर करके वेंडर्स को देके और एम्प्लॉइज की सैलरियां देके. इस मॉडल पे तो फ्रेजाइल पे हम खड़े हुए हैं कि 3 महीने का कैपिटल नहीं है हमारे पास. मेजोरिटी की बात कर रहा हूं मैं. 100%. सही है, हाँ, क्या कंपटीशन है? हमारी सारों से बड़ी इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में, दैट इज बैंकिंग. यस, ठीक है, बैंकिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट ट्रेंड है कि जो आपने कहा ब्रांच मैनेजर यहाँ से वहां गया, हाँ. वो कहता है ब्रांच मैनेजर ले जाओ, बिजनेस भी चला जाएगा. पूरी हाँ, टीम सो सेम कॉन्सेप्ट अभी बाकी बिजनेसेस में ही है. हम एक दूसरे को कंपटीशन समझते हैं, हम न्यू मार्केट मेकिंग की तरफ नहीं जाते कि न्यू टू बैंक कस्टमर लेके आए, Yes. या न्यू कस्टमर को डेवलप करें और उनको लेके आए और उनसे हम मार्केट को ग्रो लेकिन यू करें. नो हमें रिसेंटली फॉर एग्जांपल लाइक उमर सेड कि हम लेंड कैसे करते हैं. ऑब्वियसली हम सारे अपने बुक से तो नहीं लेंड करते. कुछ हमारी इक्विटी होती है, कुछ हमारा डेट होता है, कुछ ऑफ बुक हमारी डील्स होती हैं दूसरे फिनटेक्स के साथ. तो रिसेंटली यू नो
we've been sitting with founders from other fintechs and coming, and बहुत मजा आ रहा है because it's a win-win for everybody. You know, it's not कि वो बंदा बोले ओ डायरेक्टली हम उधर जाते हैं, वो हमें कह रहा है कि भाई ई-कॉमर्स हमारा नीश नहीं है, हमने बस ये कैपिटल डिप्लॉय करना है. हम कहते हैं हम ई-कॉमर्स मर्चेंट को समझते हैं, हम आपका कैपिटल रिस्पॉन्सिबली डिप्लॉय कर सकते हैं. तीसरा कुछ और कहता है. तो जब मिल के काम करेंगे, राइट, एंड you know, it's a win-win situation for everybody at the end of it. तो उसमें मजा भी आता है. डेवलप मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट बैंक एग्जिस्ट करते रहे, एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स का हमेशा कॉन्सेप्ट ये रहा है कि वी विल डेवलप न्यू बिजनेस, हम न्यू बिजनेसेस को सपोर्ट करेंगे या ये बिजनेस को इधर लेके आएंगे कि वेयर वी मेक मनी एज वेल और उनका भी बेनिफिट हो. देखें पाकिस्तान में वो कभी नहीं रहा. पाकिस्तान में हमेशा रहा है कि यार मैंने बैंक्स वाली साइड पे भी आ जाए कि यार मैंने डिपॉजिट इकट्ठा करना. मैं रिसेंटली डॉक्टर उमर सैफ को मिला, दिसंबर में मेरी बात हो रही थी जब उन्होंने पहली पोस्ट लगाई थी पेपाल की, ठीक हो गया. काशिफ अनवर साहब को मिला, हुज दी पेपाल एज इफ बस एक पेपाल ही पाकिस्तान आ जाए तो दे डोंट अंडरस्टैंड. सबसे पहले अगर मैं पेपाल की बात करूं या शॉपिफाई की बात करूं, क्यों इनके ऑफिसेस यहाँ पे नहीं है? बिकॉज उनके एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उनका एक किसी मार्केट में घुस के उन्होंने भी एक्सपैंड करना है. हमारा मार्केट का साइज अभी छोटा है, ठीक है, तो वो छोटे साइज की वजह से वो अभी यहाँ पे नहीं आ रहे. तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा सर पेपाल आ रहा है, मैं भी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, छोटा ही सही, लेकिन पता नहीं कैसे आ रहा है, क्योंकि डेली बेसिस पे वी टॉक टू पेपैल ना, हमारी ताल्लुक है, हम बात कर रहे थे. बार-बार कहते हैं हम नहीं आ रहे. सही है, वो नहीं आ सकते क्योंकि नहीं आ रहा ना. अब आप 3 दिन पहले आ गई थी दोबारा पोस्ट के फ्रीलांसर. अल्लाह करे आ जाए, अल्लाह करे. देखिए सर, आपको मुझे पता है कि क्यों नहीं आएगा, मुझे पता है क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखें एक इंडस्ट्री का जो साइज है, हमारा जो पॉपुलेशन का 22.2% तो ऑनलाइन पे है, ठीक है, उसके अंदर से ही आप निकाल के पेमेंट के यूजर्स लेके आ रहे हैं ना. अच्छा, अब फ्रीलांसर्स की आप बात करते हैं, उन्हें चाहिए, हमें खुद को नहीं पता हमारे फ्रीलांसर्स का साइज कितना है, हमें लिटरली नहीं पता. मुझे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वी इन्वेस्ट टुगेदर, ही लिव्स इन कैली, ठीक हो गया. उसने मुझे कॉल की, उसने मुझे बोला कि यार ये आज़ाद चाय वाला क्या सीन हुआ है, हमने फ्यूचर फेस्ट में आज़ाद चाय वाला सीन करवाया. तो मैंने बोला यार ये सीन हुआ है. उसने बोला यार अच्छा मुझे एक बात बताओ कि कोई एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे मैं जाके देखूँ कि तुम्हारा सारा मैन्युफैक्चरर्स वहाँ पे है, ताकि मुझे पता हो कि यार मैं आता हूँ, ये 10,000 मैन्युफैक्चरर है, 100 के साथ मैं ईमेल्स पे मीटिंग अपनी सेट कर लूँ, तो मैं अपना आइडिया लेके आता हूँ और वहाँ से हम एग्जीक्यूशन करते हैं. बोला यार पहले तू ये तो बना लो, मुझे तू वहाँ से बुला रहा है यूएसए से, मैं क्यों आऊँ? देखें यार, पेपैल और ये सारे ब्रांड्स इवेंचुअली पाकिस्तान आएंगे. कब आएंगे? When the local players in the market have built the businesses, they will acquire those businesses and then enter the market. They will not organic. If we keep waiting for PayPal to come and not develop it ourselves, then what they wouldn't come. If you look at India में आज PayPal Ventures invest भी करता है, companies को acquire भी कर रहा है. You look by the way, now PayPal का अपना BNPL. Let's not look at India though. I feel like PayPal का अपना BNPL भी है. मैं इंडिया, इंडोनेशिया, yes, बांग्लादेश. उनका अपना. अच्छा देखें, रिसेंटली मैंने एक इवेंट पे अफगानिस्तान, आई वाज पार्ट ऑफ द इवेंट. मैंने रिसेंटली एक इवेंट करवाया, उसमें इवेंट करवाया नहीं, एक बंदे ने इवेंट करवाया, तो मैं उसमें था. पेयोनियर अपना पेमेंट गेटवे लॉन्च कर रहा है पाकिस्तान में. सही है. मैंने वहाँ पे मेरे दोस्त हैं सेंटोर 1 में, अमजद भट्टी, ही कॉल्ड मी. तो मैंने बोला ठीक है यार, ये 25 ब्रांड्स हैं, मैं आपके साथ इन टच करा दे, तो करा दिया. मैं इवेंट पे चला गया, इवेंट पे प्रेजेंटेशन दे रही है पेयोनियर की टीम. प्रेजेंटेशन चली, सारा कुछ एंड हो गया. मैंने एंड में मुझे बोलती हैं कि यार आप बताएं. मैंने बोला यार मैं बोलूँगा तो आप नाराज़ हो जाएंगी. बोलती क्यों? मैंने बोला मेरी बात सुने, ये 25 बंदा सामने बैठा हुआ है, ये लेमैन नहीं है, ये सब ई कॉमर्स का प्लेयर है, और अच्छे बड़े प्लेयरों को बुला के बिठा के आप क्या दिखा रहे हैं कि यार मैं 2% पे दे रही हूँ, पेपैल 3 पे दे रहा है, ये वो वगैरह वगैरह. मैंने कहा इस प्रेजेंटेशन के अंदर एक चीज़ मिसिंग है. कहती क्या? मैंने कहा वो ऑर्डर जर्नी किधर है भाई? आप अपनी एक वेबसाइट उठाते ABC, अपना पेयोनियर गेटवे उसके साथ इंटीग्रेट करने के बाद आप दिखाते कि यार 1 2 3 ये पैसे आ गए. सही है. मैंने कहा आप अपना ये बाय प्रोडक्ट है आपका पेमेंट गेटवे, जो आपका मेन प्रोडक्ट है पेयोनियर, उसके बारे में सबको पता है, वो तो आपने वही दिखा दिया यहाँ पे. फिर मैंने कहा ये प्रेजेंटेशन एक CTO दे रहा होता ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता, तो मुझे सवाल के जवाब मिल जाते. आप मुझे बता रही है. मैंने कहा मुझे पता है. मैंने कहा ये शॉपिफाई के कैसे कनेक्ट होगा, इसका कोई प्लगइन है? कह रही है. मैंने बोला 2 घंटे पहले मैं ऑफिस से निकला था, जुम्मे का दिन था. मैंने बोला उस टाइम तक कोई शॉपिफाई पे नहीं था, पता नहीं अब हो गया तो अलग बात है. नहीं है ना. नहीं ओवरऑल, लेकिन वो शॉपिफाई प्लगइन्स अप्रूव करना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है. तो नहीं है. दैट मीन्स मैंने कहा मेरे सामने सेरान के ओनर, डायनेस्टी के ओनर सोहेल जब्बार साहब बैठे हुए थे, तुर जमाल साहब बैठे हुए थे, बरूक के ओनर बिलाल सजाद बैठा हुआ था, जैस्मिन के ओनर साद आमिर साहब बैठे हुए थे. तो मैं उस टाइम उनको मैंने देखा तो मेरे वो नाम जहन में आ गए. मैंने कहा मैं यहाँ खड़े होकर बात करूँ,
मैंने कहा उन लोगों को अभी समझ आ जाएगी ये बात क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस कौन है। मैंने कहा क्या चल रहा है। इसी तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं पेपैल आ गया है, और यकीन करें मुझे कभी कभी इमेजिन मैं रात को बोलता हूँ पेपैल नहीं आया पाकिस्तान में, जैसे आज बोला, सुबह उठ के पोस्ट देखता हूँ तो सबसे पहले मुझे ऐसे लगता है कि यार मेरी तो इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। तो I mean, Yeah, but to be honest, just they will all eventually come in. We are Yes. the next market, Yes. frontier market. हाँ. But what I'm saying, like they said, that एक तो है that we need to come up with local solutions, but there are local alternatives which need to grow, which we need to sort of. हम भी यूज नहीं करते ना, हम भी यूज नहीं नहीं करते। use करते। मैंने कल Shopify Plus एक ब्रांड का डाउनग्रेड किया है, ठीक हो गया। मैंने बताया कि भाई आप इतने दे रहे थे, आप इतने ले रहे हो, ये वो सारे कंपैरिजन बना के दे दिया, सारा कुछ हो गया। हमारी इंडस्ट्री, जैसे आदम ने बोला ना कि यार उमैर अब आप स्मार्ट लेन की तरफ यू विल राउट बिजनेसेस, मैं कहता हूँ कि हम पहले तो इस चीज़ से बाहर निकले कि उमैर भेजे वहाँ पे, नंबर 1। नंबर 2, हम कम से कम कोई एक डिसीजन तो दिन में ऐसा लें कि यार जो डाटा के ऊपर है, वी आर सिटिंग ऑन माइंड्स ऑफ डाटा राइट नाउ। देखें 2020 में नहीं पता था, लिटरली पिक्सल क्या था नहीं पता था, वेबवर्क्स को पता होगा, ठीक है, क्योंकि वेबवर्क्स उससे भी 5 साल पहले से थी या 10 साल पहले से थी। हमें नहीं पता था भाई 2020 में, सीधी सी बात है कि पिक्सल क्या होता है, ठीक है। हम पहले ऐड लगाते थे, फिर हमें पता चला कि यार अच्छा ये तो मिड बॉटम की जो बात है, मिड बॉटम टॉप तो हमने बहुत दूर की जाके, एक लड़के से मैंने टॉप मिड बॉटम का कॉन्सेप्ट सीखा था जो आपके पास काम करके गया हुआ था, उसको मैंने कंसल्टेंट हायर किया, उसको मैंने बता दूंगा मैं आदम समझ गया, ठीक है। अच्छा सही है, तो यस या ही इज, तो तो फिर मैंने ये फिर देखे, तब जाके हमें बात पता चली, करते 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 हमने चीज़ें सीखी सिखाई, सारा कुछ कर लिया। अब डाटा तो आ गया ना, और ठीक ठाक डाटा आ गया, मतलब आज जो भी मार्केट में बैठा हुआ है, जो भी काम कर रहे हैं, एज एन पर्सन, somebody is born and brought up in abroad, somebody was born and brought up in Pakistan, किसी कोई HSN से पढ़ा हुआ है, कोई कहाँ से पढ़ा हुआ है, सिर्फ वो थोड़ा थोड़ा फ़र्क रह गया है। और एक चीज़ कॉमन सेंस, मुझसे कोई पूछता है कि यार ई-कॉमर्स में कौन आ सकता है, मैं कहता हूँ मेरा ऑफिस, मैं लिटरली मैं अपने ऑफिस में बात भी बोलता था, आज भी बोलता हूँ, मैं अपने ऑफिस बॉय को भी बिठा के ऐड ना लगवाऊँ, मेरा नाम उमैर नहीं है। It's a great equalizer. क्या यार आपने टूल ऑपरेटर बनना है, आपने टूल ऑपरेटर, स्ट्रैटेजी बनाने वाला जीनियस होता है। मैं जब भी किसी कंपनी से एडवर्टाइजर उठाता था, अगर मुझे वेबवर्क से लाना था या शॉपिस्तान से, तो पहले मैं ये देखता था कि यार इसका वहाँ पे रोल क्या था, कि जैसे मैं आपकी कंपनी देखता था तो आप लोगों की नहीं, लेकिन मैं उससे नीचे देखता था कि यार उमैर आई थिंक ही वाज हेड ऑफ मार्केटिंग या मैनेजर या व्हाट्सएवर, तो मैं देख लेता था कि ये जो बंदा मैं इसका इंटरव्यू कर रहा हूँ ये किसकी रिपोर्टिंग में था। तो फिर मैं अंदाज़ा लगा लेता था कि यार अच्छा ठीक है, ओके, अकील नाम का भी एक लड़का मेरे ख्याल से आपके पास है, तो इस तरह यू गेटिंग मी। तो स्ट्रैटेजी मेरा बड़ा फेवरेट होता था, अकील का फैशन सेंस मैंने वंस मैंने हाँ तो जिस टाइम अकील की हायरिंग एक जगह हो रही थी, तो एक और बंदे की भी मैं हायरिंग कर रहा था, तो आई वाज यूज्ड टू कंपेयर कि यार स्ट्रैटेजी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि डिसीजंस जब डाटा की बेस के ऊपर मेरिट, अच्छा हर ऑफ योर रिसोर्सेज, टू बी ऑनेस्ट, मैंने आदम को बताया था कि सबसे पहला इंटरव्यू मैंने आपकी रिसोर्स का किया था, शी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर टैलेंटेड वुमेन, ज़ैनब, ओके। आई कन्विंस्ड हर ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और मैंने उसको एक अच्छा पैकेज भी दे दिया, बट शी वेंट बैक एंड शी सेड नो। Hard yards that we put her through didn't work. ठीक है, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी थी और अभी भी लगती है, इवन मैं अभी उस दिन एक और आपकी एक्स एम्प्लॉई के साथ बैठा हुआ था, आजकल मेरी बड़ी मुलाकात उनसे होती है, अबीर मीर से, तो मैं ये देख रहा था कि वो जो टायर थी आपकी, वो सारे 3-4 साल वाले थे जिन्होंने काम किया था वहाँ पे। दैट मीन्स 2 चीज़ें, एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल्स, ये सारी चीज़ें, लर्निंग, ग्रोथ सब अच्छी थी, ऑल स्टार्टेड फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, दे डिडंट लीव, दे स्टेड, और आज वो सारे अच्छी जगह बैठे हुए, तो मतलब इदारा तो द सेम कॉन्सेप्ट स्मार्ट लेन में भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, सो स्मार्ट लेन में भी द कोर टीम दैट स्टार्टेड द कंपनी इज स्टिल देयर। मैं ये कहता हूँ कि आज भी ना मैंने ना कोई 150 बच्चा ट्रेन किया है, क्योंकि मेरी कंपनी का मॉडल मैंने ऐसा बनाया था कि मैंने बोला यार मुझे फातिन, आदम, ये लोग नहीं लेके आने, ये तो मैं शायद मैंने गलत एग्जांपल दे दी, ये तो मतलब आप लोग तो मतलब फाउंडर्स हो गए, मतलब मुझे मार्केट से ना तैयार रिसोर्स नहीं लेके आना है। मैंने एक दफ़ा खुद सीख के एक सिस्टम बनाया, मैंने उस फनल के अंदर अपने एम्प्लॉइज डालना शुरू कर दिए, यहाँ से वो घुसते थे, वहाँ से निकल जाते थे। And you know that's the thing when you've done the work yourself, right? So I feel like the other thing that was different at Webworks for us was that Adam and I both
had held those job positions before. Yes. You know, so when the kids came in, we had done their work before. So it was a very different way of sort of getting them to do more by, you know, giving examples of how we had also done it. So we weren't just like sitting over there being like, oh, expect this from you, that from you. At any given point, we had done everything from customer service to the whole journey, because you Yes, have to do it. I started as a customer केयर रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, तो मेरे एक लड़के ने मुझे आया, रूम में दरवाज़ा खोला, लैपटॉप हाथ में रखा है, मेरे हाथ में लैपटॉप दिया, बोला मैं जा रहा हूँ. और मैं एक बात बताऊँ, जिस आदम ने पहले बोला था मुझे, और अभी बल्कि थोड़ी देर पहले ही बोला था कि आप दोनों बहुत स्पिरिचुअल हैं. अच्छा, क्या स्पिरिचुअल हैं? मेरे साथ ये हुआ है. लिटरली एक लड़की मुझे अप्रोच करती है, मैं उसे बुलाता हूँ, मुझे मेरे पास जगह नहीं है लड़की रखने की, मैं उसका इंटरव्यू करता हूँ, इंटरव्यू करके अब मैं फंस गया हूँ कि यार लड़की तो अच्छी है, टैलेंटेड भी है, अब इसको कहाँ एडजस्ट करूँ. मैं अभी उस कश्मकश में हूँ और मुझे मैसेज कर रही है. इतने में लड़का अंदर आके मेरा लैपटॉप हाथ में रख के कहता है कि भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं नहीं जा रहा. मैं उस लड़की को कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप आ जाए सर, मैं कल से आ जाऊँगी. मैंने कहा नहीं, रिक्शा पकड़ो, टैक्सी पकड़ो, जो पकड़ना है, 15 मिनट में मेरे ऑफिस चाहिए मुझे. इस तरह की चीज़ों ने भी मेरा बड़ा हेल्प किया है कि मेरा हर बार जिस बंदे ने मुझे एक दिन या एक घंटे के लिए छोड़ा, मेरे पास पाइपलाइन में ऑलरेडी एक लड़का या लड़की या जो भी एक एम्प्लॉय तैयार होता था. और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो जो फातिन कही थी ना कि हमने ये सारे काम हाथ से खुद किए हैं. हाँ, yes. इवन एट फिंजा आई हैड बिल्ड प्रोडक्ट्स, लेंडिंग देखी, क्या पिटफॉल्स हैं, क्या सारा कुछ है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यू लॉट टू कम इन. हम फर्स्ट टाइम ऑपरेटर्स नहीं हैं, वी आर एक्सपीरियंस ऑपरेटर्स, तो हमें चूज करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है. देखिए मैं अब देखिए, लेकिन सिखाना भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको कई दफा पॉइंट पे लगता है कि ये क्यों नहीं समझ. पेशेंस चाहिए. पेशेंस तो वो भी डेवलप करना पड़ता है. कॉन्फिडेंस, पेशेंस और ये कॉन्फिडेंस, पेशेंस, ये कॉमन सेंस, ये सारी चीज़ें मिला के ही बनती है. अब देखिए मुझे पता होता है, मैंने आज एक लड़के को मैसेज किया, मैंने कहा यार ये पोस्ट बूस्ट कर दो. बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कर रहा हूँ. मैंने मोबाइल उठाया, मैंने इंस्टाग्राम खोला, मेरी ऑडियंस बनी हुई है सारी, मैंने लगा के ठग करके 10-10, 20-20 डॉलर जो लगाने थे मैंने लगा दिए. कहाँ से काम करना आता है ना. When you're a founder, right? No job is too big or too small. Yes. Now, I'm like Adam, Umar, we're all sitting like on the opposite end of a 10-year career in this industry, right? Even today, I kid you not, if we have a shortage of resources, or if my customer service team is not doing something right, they can come and tell me, Fatin, can you go do a couple of sample calls in front of them? And I will go do those sample calls with my team in front of them, right? And I know no one can teach them better than I can how to do that. And when they see that, okay, fine, the CEO is sitting here doing the sample, nothing is too big or too small for a founder, and when it's your own company, right? And you're willing to put that in. So, मैं जब बिजनेस डेवलपमेंट करता था ना, तो मैं लोगों को कहता था कि मुझे जो है ना आप रेफ़र करें. ठीक है, कि मुझे आप निशात रेफ़र कर दें, 100 कमाल कर दें या सैफायर कर दें. मैं कहता था कि कन्विंस नहीं करना है, ना बोलने उमैर अच्छा है, बस बोलो यार उमैर है, टेक्नो मार्केटिंग कंपनी को लीड करते हैं, आप मिल लें. मैंने कहा अगर मैं अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस नहीं बेच सकता ना, तो मुझसे अच्छी कोई दुनिया में नहीं बेच सकता. और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने अरसा बीडी की, 98% मैंने अब क्लाइंट अपना लॉक किया है. आज इन तक कोई क्लाइंट नहीं है कि जिसने मेरे साथ काम नहीं किया, और नहीं किया होगा जिसको मैं मिला वो वही है कि जिसने या तो बिजनेस नहीं किया, या तो आई डोंट नो व्हाट्सएवर वाज द रीज़न. वंस यू ब्रिंग समबडी इन फ्रंट ऑफ मी, मैं उसको बोतल में बंद करके ढक्कन लगा लूँगा. ये मेरा काम है. ठीक है, देखिए क्योंकि मेरी नीश क्या है, मैं 2003 से काम कर रहा हूँ. माई एज इज 37 ईयर्स. ठीक है, बट आई स्टार्टेड वे टू अर्ली बिकॉज आई वांटेड टू वर्क एंड एवरीथिंग. और मैं क्लाइंट सर्विसिंग में ही हूँ. मैंने बैंक में जॉब की, मैंने होटल्स में जॉब की, मैंने टेलीकम्युनिकेशन में काम किया, मैंने ई कॉमर्स में आ गया, सॉफ्टवेयर हाउसेज में आ गया. लेकिन एक ही चीज़ कर रहा था, वो कर ये रहा था कि मेरी नीश क्या है कि चले मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, ये तो सारी चीज़ें फिर आपकी आ जाती हैं. क्लाइंट सर्विसिंग, आई नो हाउ टू कन्विंस समबडी. और इस पाकिस्तानी मार्केट में, इस शहर में मैंने लोगों को ऐसे ही अपना मुरीद बनाया है कि उनको पहले बताया. अच्छा देखिए, आई पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. मैंने ब्रांड्स के साथ जब 2020 में 19 में काम स्टार्ट किया, उस टाइम रात 2 बजे 2:30 बजे बैठ के खुद कस्टमर को कॉल भी कर लिया करता था, ये भी वो भी ये भी. तो ब्रांड को बिजनेस के बाद पता चल गई कि यार ये मेरा खैर ख्वाह है, ही इज टेकिंग द पेन, ही इज़ नॉट वन ऑफ. अगर मैं बैंकर वाला काम करता ना, ये 9 to 5 और 10 to 6 वाला, मैं आज इंडस्ट्री में नज़र भी नहीं आ रहा होता. हम सारे नहीं नज़र आ रहे होते. तो देखा, हम सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो हमारे लिए कोई काम छोटा नहीं. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कि हर चीज़. और दूसरा अच्छी बात ये है कि व्हाट एज यू वर सेइंग कि डेटा ड्रिवन अप्रोच. हम अब डेटा ड्रिवन अप्रोच से हम जिस तरह आपने बता रहे थे कि यार वेयर हाउस के अंदर पार्सल्स पड़े रहते थे 4-4 दिन, उनको कोई ट्रैक ही नहीं करता, नहीं कर सकता ई कॉमर्स. तो अब हम हमारा सिस्टम आपको रिपोर्ट देता है कि यार
2 days past in और warehouse हो अगर गया। ये मैं आपको बताऊं कि अगर वेबवर्क्स और वेबवर्क्स जैसी एजेंसीज और आप जैसे लोग नहीं होते ना, तो स्मार्ट लेन जैसे प्रोडक्ट भी नहीं बनते, और लिटरली बिजनेस वाले ब्रांड सोचते ही रह जाते कि मतलब ब्रांड को खुद को नहीं पता था। आज भी मैं जानता हूँ बहुत सारे जब ऑडिट हुए ब्रांड्स के साल 2-2 साल बाद, तो पता चला 100 पार्सल जाता था 5-5 करके, तो लोग खाई जा रहे खाई जा हैं। रहे। कितने पार्सल ऐसे थे कि राइडर So हाँ वेयर हाउस वाला इस राइडर वजह से मिल we मिला के कहा यार ये created per package मैंने reconciliation। राइडर्स को वेयर हाउस के पार्सल बेचते हुए देखा है। मतलब एक राइडर आया XYZ ब्रांड का पार्सल पकड़ा हुआ है, वो प्लेस ढूंढ रहा है किसी को कि यार तू ले ले, या ठीक So है। I feel like market pivot करती है. हम एक वो अब हम इसीलिए आए ना because market ने pivot किया, एक लेकिन- opportunity थी, हमने उसको लिया. लेकिन मैं So, समझता हूँ स्मार्ट market लेन pivot जैसे करे. प्रोडक्ट या स्मार्ट लेन जैसे प्रोडक्ट या स्मार्ट लेन प्रोडक्ट से आपको तब तक फायदा नहीं हो सकता जब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे एक चीज को, आप मान ही नहीं रहे। मतलब आप सुन रहे हो, देखें मैंने जितने पॉडकास्ट किए ना, दिस इज वन ऑफ द पॉडकास्ट व्हिच विल बी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, ठीक है। 1 नंबर 2 मैंने आपकी ईमेल देख ली थी in which you told the organizers that you're very excited about this podcast. यस ऑब्वियसली, क्योंकि ये देखिए वाला आपने कर दी। मैंने देखे मैं आई वाज इन टच विद फातिन, ठीक है ना। पहले मैं फातिन का सोलो पॉडकास्ट के लिए वी वर इन टच। We were in touch. मुझे एक दफ़ा जानजेब ने वो जो तेज़ रफ्तार सबक रफ्तार कौन सी वाली कुरियर है, बर्क रफ्तार बरक रफ्तार, हाँ ठीक है, उन्होंने भी मुझे बोला था। तो एंड आई वांटेड टू डू पॉडकास्ट विद पीपल लाइक फातिन एंड आदम एंड इवन उमर, आप भी, बिकॉज एक मज़ा आता है कि यार क्या बात हो रही है। नॉट मैं आई डोंट, अच्छा देखें हमारे यहाँ बैठने से पहले टॉपिक भी नहीं था, अभी भी नहीं है, ठीक है ना। मैं कोई क्वेश्चन, मैंने आज दिन तक 60-70 जितने भी पॉडकास्ट किए हैं, एक भी स्क्रिप्टेड नहीं था। हाँ मेरे पॉडकास्ट जब रिलीज होता है ना, आप उसके टेन्योर से देख के बता देना कि 20 मिनट की 30 मिनट की रिकॉर्डिंग है, तो इसका मतलब ये था कि मज़ा नहीं आया मुझे, ठीक है। 45-50 मिनट की है तो वो एवरेज था वो उससे। एंड बाय द वे ये पहला पॉडकास्ट है जो इतना, पहला 3 गेस्ट के साथ पॉडकास्ट, ठीक है, और सेकेंडली ये इतना बड़ा पॉडकास्ट आज दिन तक मैंने अभी तक नहीं किया, ठीक है। तो बल्कि ये बता सकता है, ठीक है, सारे इसी ने रिकॉर्ड किए यार। मतलब जब तक आदम हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि यार स्मार्ट लेन को बुलाया है तो क्यों बुलाया है, ठीक है। देखें एक ये चीज़ होती है कि मैं क्या, एक होता है कि ब्रांड क्या कर रहा है, एक है कि स्मार्ट लेन क्या कर रहा है, और एक है इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है। ये जब आप नहीं, मुझे किसी दिन एक ब्रांड ओनर ने अभी 4 दिन पहले मुझे बोला यार इंडस्ट्री से मेरे क्या लेना देना है, मुझे इंडस्ट्री ने मुझे मेरी बात बताया। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, इट्स वेरी इजी फॉर मी कि दैट टू शो योर कंपैरिजन लेकिन आई फील लाइक जब 3 ई-कॉमर्स या 4 ई-कॉमर्स के बंदे बैठते हैं तो इनएविटेबली ब्रांड्स बेचारों को बहुत मार पड़ती है। So I feel like हम सारे ब्रांड्स पे डिपेंडेंट भी हैं, तो थोड़ा बहुत उनको भी क्रेडिट दे देना चाहिए। लेकिन देखिए हमें हमारे नसीब का हमारे नसीब का हमारी मेहनत का मिला मिल रहा है। नहीं ठीक सही है, लेकिन हम हमने दो पैसे, देते हैं हाँ वो brands ठीक है, मैं मानता हूँ कि बिजनेस के लिए भी चाहिए कि बिजनेस के लिए यही बात है, मेरे भाई बहुत काम किया है, you know, आपने भी इस इंडस्ट्री में, आपको पता है हमने भी इस इंडस्ट्री में अपना समझ के ई कॉमर्स को एज यू नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ ई कॉमर्स जैसे कह सकते हैं काम किया है। एंड अब एक प्रोडक्ट बनाया है बिकॉज वी जस्ट डिडंट वांट टू सर्विस ब्रांड्स, वी वांटेड टू बिल्ड समथिंग दैट कुड बी लाइक एन एपिसेंटर फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, कि सारे हमारे ऑर्डर्स डेटा इसके थ्रू पास करें एंड वी कैन यू नो ऑप्टिमाइज थिंग्स बेस्ड ऑन दैट। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह, काम किया, मेहनत की, कर रहे हैं, करते रहेंगे, प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट माशाल्लाह एस्टैब्लिश भी हो गया है और स्केलेबल भी है और स्केल भी हो रहा है। एंड इट्स गुड कि यू आर नॉट स्केलिंग द प्रोडक्ट एज एन वेरी, एक नहीं होता, एक होता है 1000 रुपये का प्रोडक्ट, एक होता है 10,000 रुपये का प्रोडक्ट। 1000 वाला प्रोडक्ट 1 लाख लोगों के पास जाता है, 10,000 वाला प्रोडक्ट 100 लोगों के लिए जाता है। तो फ्रॉम वेयर आई सी योर प्रोडक्ट इज, आपने उसको वो बकरा मंडी नहीं बनाया हुआ अभी तक प्रोडक्ट को, मतलब जहाँ पे फिट हो रहा है वहाँ पे आप दे रहे हैं और लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं। सारों से ज़्यादा बड़ी जर्नी हमारी एजुकेशन की है। और दूसरा, अगर आप हमारी प्रोडक्ट क्लाइंट्स देखेंगे ना, बड़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, लॉन्ग टेल को ज़्यादा सर्व करते हैं हम। मतलब ये नहीं कि बड़े क्लाइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है और सारा कुछ, क्योंकि हमारा मीडियन मिडिल क्लाइंट जो है वो एक्चुअली इज जिसको आप बिजनेस कहेंगे। हाँ यस, I think a better way to put it, SME. I think a better way to put it would be कि ये नहीं है कि हम you know वो 10,000 वाली नीच के लिए जा रहे हैं और बकरा मंडी नहीं बनाया हुआ। हम we want to go for the masses, but we want to be a product for the masses, but we're not willing to subsidize and go there in a unsustainable way. देखिए यस आई नो यू वांट टू, इट्स फॉर मैसेज, बट वो मेरा बोलने का मतलब ये था कि अगर आप चले जाएंगे ना सुबह उठ के एज एन फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स, सुबह उठ के आप लोग अगर अपना मिशन ये बना लें कि यू नो यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, यू नो मनी ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए इंसान को। जैसे कि आप तीनों सुबह बैठे
कल 50 ब्रांड्स थे, आज कितने, आज 70 कर लो, इस 80 कर लो। टारगेट्स और बेंचमार्क्स अगर सिर्फ रेवेन्यू और नंबर ऑफ क्लाइंट से लग जाएगा तो इनोवेशन एजुकेशन बंद हो जानी है। बिल्कुल। Yes, तो ये मेरा मतलब yes. हमने ना बड़े जब ये स्टार्ट किया था बिजनेस और ओवर द लास्ट 1 ईयर हम बड़े क्लियर थे कि यार 2 चीज़ें हमने नहीं करनी। वी विल क्रिएट अ वेंचर बिजनेस जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जिसपे सारा कुछ, बट ये नहीं हो सकता कि हम फ्री की डिलीवरीज दे रहे हैं, हम बहुत सस्ती डिलीवरीज दे रहे हैं, हम बाकी मार्केट को ख़राब कर रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ करें। हमारा था अपना सस्टेनेबल बिजनेस होना चाहिए, पर ऑर्डर हमें भी पैसे बनाने हैं, अगले कोरियर कंपनी ने भी बनाने हैं, तो एवरीवन नीड्स टू मेक मनी है। एक चीज़ अच्छी होगी आपके साथ कि कि आप लोग लेट आ रहे हैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अच्छा है। जो जितना लेट आएगा ना वो उतनी देर ज़्यादा रहेगा, जो जितना जल्दी आएगा वो चला जाएगा। वो सब कुछ ट्राई देखिए, करके try, हाँ, yes. लेके आ रहा है मुफ्त का तो लेट यस, हम कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते किया, 4 महीने काम किया उनके साथ ऑन स्मार्ट लेन। उसके बाद उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आती थी, देखें जी ABC कोरियर कंपनी वाला आ रहा है, वो मुझे 100 रुपया रेट दे रहा है 120 की बजाय। तो हम उसे कहते थे यार आप हमारे साथ काम ना करें। अंडरस्टैंड स्मार्ट लेन, दे आर नॉट बाइंग, दे They're not paying for the service. They don't want to pay for the service. हम उसे कहते थे हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, 120 रुपए Yes. नहीं, हमारे 120 रुपए ही है, आप 100 रुपए पे वो डिलीवरी करें, आप उसे करा। देखें असल में प्रॉब्लम क्या है कि जब सुबह PNL खुलता है ना, तो उसके अंदर जब लिखा हुआ उसके अंदर वो फिल्टर लगा के उसको जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर करेंगे तो जो पहले 5 पे ऊपर आ रहे हैं ना बस उनके पीछे पड़ जाओ। ऐसी बिकॉज प्रॉब्लम ये है ना कि हम ये नहीं मान रहे कि हम सब एक अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम सबको इस तरह बनाया कि हम लोग ये सारा कर रहे हैं। नहीं, हम ना सॉरी टू से फिरौन वाली अप्रोच पे जा रहे हैं। इसका भी पकड़ ले रिस्क, इसका भी पकड़ ले, इसका भी पकड़ ले, इसका भी पकड़ ले, इसका भी पकड़ ले, इसका भी पकड़ ले। सारा दिन एक बंदे को बिठाया हुआ, इसीलिए मैं बताता हूँ आपको, कराची और लाहौर के हेड ऑफ ई कॉमर्स ज़्यादा हो गया। नहीं मतलब ज्यादा हो गया। अच्छा शायद शायद मैं भावनाओं में आगे निकल गया, वो एक अलग नहीं, लेकिन ये तो वही अप्रोच है। अप्रोच अनफॉर्चुनेटली मैं उसको रिफ्रेश कर दूंगा। पेनी वाइज पाउंड फुलिश तक ठीक था, फिरौन थोड़ा ज़्यादा हो गया। नहीं वो सर यही हो गया ना। देखिए बाय हुक और क्रुक यू ब्रिंग अ पर्सन, यू मेक हिम सिट ऑन अ सीट एंड यू टेल हिम लिसन आई नीड दीस 3 पीपल, स्क्वीज देम, किसी तरह ग्रोथ इसके अंदर से निकाल। नहीं, that's true. हमने ये क्या है, ये ना ब्रांड्स को कहा कि हम आपके साथ ये काम नहीं फिरौनियत करें। है कि मैं यकीन करें कि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। मैं एहसान चप्पल स्टोर वालों की बात करता हूँ, मैं मुश्ताक क्लोथ स्टोर वालों की बात करता हूँ। ये लोग मतलब ये उन लोग, हाँ क्या, नहीं ये वो लोग हैं, नहीं ये अच्छी बात करने लगा हूँ कि यार मतलब इफ यू वर्क विद देम, नॉट अ सिंगल वेंडर कंप्लेंट्स अगेंस्ट देम, ठीक है, बैंक से, लोन से, इन चीज़ों से वो नहीं है, बिकॉज वो शरिया लॉ के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो बिकॉज आई नो बोथ ऑफ देम वेरी क्लोजली, हमने भी उनके साथ काम किया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है यार, उन लोगों के साथ आप काम करते हैं, वो पहले ही लड़ लेते हैं ऐसे कि हम 10 रुपए नहीं देंगे, हम 20 देंगे, 8 देंगे। ये वो देने के बाद फिर उसके बाद जितनी मीटिंग्स होंगी, आपकी बात होगी, आपकी एनालिटिक्स के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, एग्जीक्यूशन के ऊपर, रिपोर्टिंग के ऊपर, दे नेवर एवर डिस्कस दिस। बिकॉज वाई? बिकॉज इट्स देयर बिलीव कि यार ये लेके अपने मेहनत का जा रहा है और अपने नसीब, अगर कहीं ज्यादा लेके जा रहा है या कम लेके जा रहा है, अपने नसीब का लेके जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। और वो ब्रांड्स हमें छोड़ के गए, 6 महीने 4 महीने बाद वो वापस आए हमारे पास, उसी रेट पे आए। सो वी हैवंट, You should stick to that. हमारी बड़ी क्लियर मेंटालिटी है इसमें कि हमने डिस्काउंट नहीं करना किसी को, हमने मार्केट नहीं खराब करना। बंद हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा। देखिए आपने अगर SaaS, it's a SaaS based product, ऐसे ही that means कि you have a very good expenses, you need to handle it because there is a team को growth चाहिए। Umair bhai, that time is gone that you can just rely on raising equity and keep subsidizing. You can't. ऐसा नहीं होता ना। देखें आपको अपना मॉडल, आप देखें आपके ऊपर आपके कारोबार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी भी है, प्लस उन 30, 40, 50, 100 लोगों की भी है जो आपके साथ काम कर रहे हैं। मतलब यू नो यू हैव टू थिंक अबाउट द बिजनेस, यू हैव टू थिंक अबाउट द रेवेन्यू, यू हैव टू थिंक अबाउट द ऑप्स एंड ग्रोथ फॉर ईच एंड एवरी, बिकॉज देखें इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि मैंने आगे जो आपसे बात की थी कि वेयर आई वाज वर्किंग व्हेन आई लेफ्ट, तो होता क्या है कि जब बंदा निकलता है आगे अपनी कंपनी खोल लेता है। तो मैंने 5 साल वहाँ से कमाया, सेकेंडली वहाँ 35 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों जाके किसी का रिस्क छीनने की कोशिश करूँ? इवेंचुअली मैं छीन भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा खुदा कहता है कि यार मैं राज़िक हूँ, मैं रहमानुर रहीम हूँ, तो doesn't work that way. I think one thing positive though, which I would like to say, कि most of our clients come through word of mouth, which shows me
that people do value service as well. Yes. I think stuff that is changing in the Yes. market. So I think that is a positive And by the attitude way, that I'll I tell you see. one thing very good कि मैंने स्मार्ट लेन का पहले सबसे पहले कहाँ से सुना. स्मार्ट लेन का मैंने सबसे पहले सुनना ही शुरू किया कि आपके लॉजिस्टिक्स पार्टनर से, कि मैं आई डोंट रिमेंबर कॉल कुरियर था, आई डोंट रिमेंबर पोस्टेक्स था या जानजेब या whoever was it, the very first person to tell me and give me an awareness of your product Smart Lane was your own partner. Yeah. That means कि you are valuing the partner ना. Otherwise logistics वाले तो नहीं किसी को promote And the करते. partner is valuing you. So Yes, that's- yes. that's what I'm saying. Brands. हम बहुत क्लोजली काम करते हैं छोटे लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स के Yes. साथ खास तौर पे. देखें, एक असल में ना आप मैसेज में हैं ऑलरेडी. आप मैसेज में इस तरह है कि आप उस अनटैप मार्केट में हैं जिसका डाटा सिर्फ लॉजिस्टिक्स के पास होता है. ऐसे ही है. हम कहते हैं ना, मैं क्यों कहता हूँ कि पहले मिलके तो कंपटीशन एक अचीव कर ले, फिर कंपटीशन करेंगे. 100 ब्रांड्स, दुनिया या बिजनेस, ये कारोबार उस 90% में नहीं खड़ा हुआ जो वेबवर्क्स के पास थी. ऐसे ही. ठीक है, ऐसे ही क्योंकि हमारा जो है ना वो एक डब्बे के अंदर हम उस ब्रांड को उठा के यहाँ ले आते हैं, फिर उसको वहाँ ले जाते हैं, फिर उसको वहाँ ले जाते हैं, फिर उसको यहाँ ले आते हैं. असल में उससे हटके भी कारोबार है. उन बेचारों के लिए अगर फोकस किया जाएगा और उनके लिए ऐसे मॉडल्स बनाए जाएंगे तो यकीन करें वो 10 साल हमारे साथ रहेंगे. बिकॉज जब आप उनको 0 to 1000 वाली जर्नी बता देंगे, डे फर्स्ट में उसको एक प्रॉफिटेबल एटलीस्ट फ्रॉम योर एंड. ऐसी है. देखिए, सर उनको कदर भी ज़्यादा यार आप होती है। सारों से अच्छा एग्जांपल हमारी मार्केट के अंदर है जैज़ कैश इजी पैसा. जी वो बैंक वाले कस्टमर को नहीं पकड़ने गए थे कि यार मैं इसको अपने पास ले आऊं. बिल्कुल. उन्होंने कहा हम नई कस्टमर बेस ऑल टुगेदर नहीं बनाएंगे जिनको ट्रांजैक्शन नीड है, उसने अपना बिजली का बिल पे करना है, जिसने मैं टॉप अप करना है, जिसने ये चीजें करनी मैं है. उस बिजनेस को, मैं कहता हूँ कि किसी को भी जब मशवरा देता हूँ ना बिजनेस शुरू करो, मैं कहता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने देखिए किस तरह बड़े मजे से बड़े अच्छे तरीके से उस ऑडियंस को उठाया जो 35% हमारे मुल्क की पॉपुलेशन है, विच इज 20 to 30 years old. मेरा प्रोडक्ट बनता है अगर उस 35% के लिए, दैट मीन्स गुड ना. वो बाकी बाइफिकेशन इतनी ज्यादा हो जाएंगी. ग्राइंड लंबा है ना. राइट लंबा है, ठीक हो गया. तो आप अपना मॉडल ही ऐसा बनाओ, आप अपना मॉडल ऐसा बनाओ कि वो जाके हिट ही मेजोरिटी में करे तो वो पहले दिन ही वो स्केलेबल हो जाएगा. इट डिपेंड्स कि अब आपने उसको कैसे सस्टेनेबल बनाना है और उसको कैसे लेके चलना है. स्पीकिंग ऑफ दिस, हर प्रोडक्ट का एक फेज होता है. आपका फेज 1 था, फेज 2 था, व्हाट्सएवर, इट्स कंप्लीटेड एवरीथिंग. बट आई थिंक कोई भी प्रोडक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होता, स्टिल उसके ऊपर अपकमिंग ऑलवेज उसकी एक लर्निंग हो रही होती है, एक टीम R&D कर रही होती है, रिसर्च कर रही होती है. व्हाट इज द न्यू, what is your USP? You told me about this. How is your idea unique? You told me this. What is the leader vision and history behind this? वो सारा तो हमने डिस्कस कर लिया. अब फ्यूचर की बात करते हैं कि what is the future of this product? फ्यूचर बड़ा सिंपल है. वी आर गोइंग टू बी अ डेटा ड्रिवन प्रोडक्ट जो आपकी चीज़ों को ऑटोमेट करेगा फॉर ई कॉमर्स मर्चेंट. Alright. वो आपकी बेशक इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, वो बेशक आपकी मार्केटिंग हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मार्केटिंग बैकग्राउंड से एग्जिस्ट करते हैं, एंड टारगेटिंग इज एन आर्ट टू द ऑडियंस. Okay. एंड वी फील ओवरऑल दैट कि जो हम क्रेडिट दे रहे हैं उसको चीज़ें बाय करने के लिए, वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट दैट. हमें उसका यूज़ भी देखना है कि क्या हो रहा है. ये तो नहीं कि बिजनेस ओनर ने पैसे निकाले और अपनी जेब में डाल लिए, उसको बिजनेस ग्रो करने के लिए फाइल नहीं खरीद इस्तेमाल ले. किया. क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये भी है ना कि टू कीप, वो जो आगे जब फातिन ने इन द बिगिनिंग बात की थी कि हम ये भी कर रहे थे वो भी कर रहे थे, तो मैंने एज एन वेबवर्क्स तो मैंने कहा कि डेफिनेटली आप ये भी कर रहे थे कि आप यू वर कीपिंग वेरी वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ टू योर क्लाइंट्स कि दिस इज, क्योंकि जब आप इतने ज़्यादा जगह काम कर रहे होते हैं तो फिर आपके पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन पहले आ रही होती है. तो आई मीन दैट इज अ तो गुड अब थिंग. हम एक प्रॉब्लम देख रहे हैं जो हमारे ब्रांड्स को आती है कि फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग स्पेंड के लिए क्रेडिट्स चाहिए, ये चीज़ें चाहिए. हाँ, वो और वही ना, सारा- वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाँ. पेमेंट मेथड. सो अब हमारा क्लोज लूप वॉलेट बना हुआ है, हम उनको सेटल करते हैं. द नेक्स्ट फेज फॉर अस इज कि हम किसी तरह वो जर्नी भी अपने प्रोडक्ट के साथ ही डिजिटाइज कर दें कि ये यार पैसा वहाँ भी यूज कर लो. आप ये पैसा वहाँ भी यूज कर सो लो. दैट और $30,000 का जो, सॉरी $30,000 का जो कैप है जो एज एन इंडिविजुअल हर बंदे को मिला हुआ है, और उसके अंदर वो Yeah. आई नो ब्रांड्स जिनका जिनका so- महीने में एग्जॉस्ट हो रहा है. सो दैट्स द नेक्स्ट थिंग जिसकी तरफ हम काम करें कि जो आपका पैसा है उसी वॉलेट से आप अपनी सैलरीज भी पे कर सको, उसी वॉलेट से आप अपने मार्केटिंग एक्सपेंस भी पे कर सको, एंड वी गेट अ विजिबिलिटी अराउंड दैट कि आप So, बेसिकली कहाँ Actually, इस्तेमाल देखिए, करें. this is the beauty of Smart Lane, which I see is this, because I was trying to figure out where do you fit in this. So now after this podcast, I have a very well understanding कि e-commerce marketing और technical जो webworks driven या उससे पहले जो इनका past experiences था, both of the co-founders plus you
jump in this and this is how the मतलब जो मॉडल और जो प्रोडक्ट है वो इस तरह नहीं स्केल कर रहा, वो माशाल्लाह इस तरह स्केल कर रहा है ना, बिकॉज 3 लोगों का अलग अलग डिपार्टमेंट, 3 लोगों की अलग अलग हिस्ट्री और उससे हो रहा है in ways that are interlinked and codependent. यस डेफिनेटली ना, क्योंकि देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को भी मिलना है ना, आप नामों के ऊपर जाएं, अच्छी बात है नाम, बिकॉज इफ आई टाइप ऑन गूगल SaaS बेस्ड प्रोडक्ट और ओमनी चैनल और व्हाटसोएवर OMS या IMS की मैं बातें करूँगा तो डेफिनेटली योर नेम विल पॉप अप on the basis of the name of your product. Definitely I'll have a meeting with you, but I'll take the decision on the basis of the founders and the team as well, because it's you people I'm investing in. Yep. It's you people I'm trusting and putting my trust and putting my business in your hands, because least is this that you come up for a solution and you know you start making problems for me and my ecosystem. This is what I don't want. So that is the reason. So then once people meet you and then uske baad aapki obviously you introduce your mid-level management team and then you know then they take over the client and it's their responsibility. And I think one thing that you know really I really liked अभी जो हमारी बात चल रही थी was when you told us about the different resources जो हमारी Webpost journey से आप मिले हैं, Yes, how बिल्कुल. you know they've been very you know, so that's a great source of joy and pride for us, you know, that we did something right, that you know they were our team members, they learned the work, you know, And they, wherever they are sitting, they are on a senior position because they serve for 5 years. You sort of you know appreciated that bit and told us about that, so that was great. And the other thing where you mentioned that you know you heard about us from other logistics companies Yes. and courier partners. Yes. So you know that just you know when you go home you just think you're doing something right, or you're doing something the right way. That you're proud of, You know, actually. that you're और building, you're yeah, doing yeah. what you're doing, and then the way you're building it also. और ये हमारा कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का भी कि My- आप हमारा हम तीनों को आप कभी भी मिल सकते हैं, Yes. ठीक है, मगर हमारे ब्रांड से आप जाके पूछेंगे जो काम करें वो कहेंगे यार कहीं 30 दिनों में हम इनको एक दफा मिल लेते हैं, बट बाकी इंटरेक्शन डेली बेसिस देखिए पे होता ही ऐसे है ना, इट्स देयर टीम व्हिच इज फुली एम्पावर्ड. यस होता ही ऐसे है, उस कंपनी का साइज यहीं से पता चलता है कि अगर हर मीटिंग में C लेवल बंदे को आना पड़ रहा है ना, दैट मीन्स कि ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक हिज जानशीन और हर जानशीन ठीक हो गया. दैट मीन्स कि अगर वंस देखें आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डन होगी, ठीक है, 30 दिन की मीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी चले आप पे आ गई, बट वो जो डेली टू डेली की मीटिंग है और यू नो दैट मैकेनिज्म जो कि ऑलरेडी यू आर यू नो यू उसी पार्ट में से निकल के ही तो ये प्रोडक्ट बना, तो और हमें that- हमें कांटेक्ट ये नहीं होगा, हमें Yes. फोन ये आएगा कि आपके उस एम्प्लॉय की तबीयत ठीक है, वो आज फोन नहीं उठा रहा. अच्छा ये अच्छा ये ज़्यादा ये से हाँ ज़्यादा होगा. ये बड़ा प्रॉब्लम होता है. अच्छा मुझे सबसे ज़्यादा नफरत होती है जब कोई इंटरव्यू करूँ तो मुझे बोलता है सर आपकी ऑपरेटिंग टाइम्स क्या है. कम ऑन यू कमिंग एंड अप्लाइंग इन एन ई-कॉमर्स फर्म, देयर इज नो टाइम. Yeah, यू yeah. हैव द प्रोज यू हैव द कॉन्स. जब आपकी मतलब कोई आपने हनीमून पे भी जब जाना होता है फिर आप वर्क फ्रॉम होम ले जाते हैं. Work पिछले from- 2 साल मैंने पाचार को बोला बंद करो वर्क फ्रॉम होम, मुझे समझ नहीं आता एम्प्लॉय सारे साल के कब वर्क फ्रॉम होम में कराते हैं, दिसंबर में आके उसकी एनुअल लीव सारी पड़ी हुई होती हैं. अब या तो उसको इकट्ठी दो या उसको पैसे दो. मैंने कहा व्हाट इज दिस, और वेयर इज द पीस ऑफ माइंड फॉर एन एम्प्लॉय. आई मीन अगर वो हर बार वर्क फ्रॉम होम ले रहा है तो दैट मीन्स कि समथिंग इज रॉन्ग इन माई इकोसिस्टम एज वेल विच आई नीड टू इम्प्रोवाइज. कमिंग टू द लास्ट पार्ट, AI, बिकॉज यू नो आई वाज आजकल हर कोई AI की बात कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली 1% भी हम में से किसी को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं है. हमारे लिए AI असल में वो ChatGPT है. Claude. Free I वाला. like yeah no I like Claude more than ChatGPT. अच्छा तो वो हमारे लिए हमारे मेजोरिटी लोगों के लिए ना AI जो है ना, जैसे आप AI की बात करो तो सीधा लोग ChatGPT पे आ जाते हैं. वो भी उसके फ्री वर्जन की मिसाल दे देते हैं जो 2021 में बंद हो गया, उसके बाद के डाटा नहीं उसके पास. स्मार्ट लेन AI, how AI is incorporated in smart lane. यार Logic engine. the optimization engine, we are in the early stages of that. Alright, जहाँ it's fine. लाहौर टू कराची जाना है तो किस कोरियर के साथ बुक होना है, या लाहौर टू फैसलाबाद जाना है किस कोरियर के साथ बुक होना है. दैट इज लुकिंग एट द पास्ट 7 days डेटा कमिंग अप, हु डिलीवर्ड द फास्टेस्ट. और इस टाइम राइट नाउ इफ यू लुक एट आवर प्लेटफॉर्म, वो आपको बताता है लाहौर के अंदर एवरेज डिलीवरी टाइम ऑफ हर कोरियर कंपनी कितना 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 आ रहा है. ऑन अ डेली बेसिस अपडेट होता है वो कि इसने एवरेज इतनी देर में किया. एंड And then it helps you make the decision कि वो yes इस वीक में तो डेवो बहुत अच्छा जा रहा था. Decision engine ही उसको हम कहते हैं. इंजन ही उसको कहते हैं. दैट इज आवर And definitely it's in a beginning process because यहाँ तक नहीं आप आगे लेके जाएंगे इसको because Of course. देखिए इसको फैक्टर्स बहुत है. बारिश हो जाए कौन सा कोरियर अच्छा चलता है. आपने मॉडल को ना कॉम्प्लिकेट करते जाना होता है, उसमें नई चीजें First you have फैक्टर्स to डालते gather हैं. enough base data, and then you start building, and then we have to work. If you remember, fleet हमारी नहीं है.
So we have to take the pace at the same pace as the different partners where they stand today, right? So moving forward, route optimization for within city, for within areas in Lahore, Garden Town to Model Town to defense, who should be taking the parcel. So that's where मॉनसून का सीजन आता है, I agree. कौन सा कोरियर मॉनसून Agreed. के सीजन में ज्यादा अच्छा तो ऑपरेट करता है? इसके बाद अच्छा That is data अच्छा point. दैट इसके बाद मेरा जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि एक है Then credit एक- valuation के ऊपर AI Yes. is a completely different ball game altogether कि एक बिजनेस को हम किस तरह क्रेडिट evaluate बेसिकली करें. यस ट्रू आई अंडरस्टैंड वो जितनी चीज़ें हमने पॉडकास्ट पे अभी बात की बेसिकली वो कन्वर्ट होके एआई में आ गई ना कि आपका जो विजन मिशन जो सारा कुछ था वो आपने उसको एआई के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया एआई के साथ प्रोडक्ट को इनकॉर्पोरेट किया और फिर अब ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा वो खुद उसको ऑप्टिमाइज भी कर रहा है और उसको एग्जीक्यूट भी कर रहा है. यहाँ बात ये आती है कि मी एज एन ब्रांड कम्स ऑन स्मार्ट लेन. तो यू टेल मी के लाइक दिस एंड दिस इज दी वन ऑफ द पर्क्स एंड वन ऑफ द बेनिफिट्स दैट हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ लेके जाना है. तो उसमें एक चीज़ तो ये होगी कि एक है कि मेरा डाटा उसकी बेसिस के ऊपर आप मुझे ही बता दें कि मेरा पिछले महीने से इस महीने या मेरे पिछले दिन से इस दिन के साथ जो है मैं किस कुरियर या लॉजिस्टिक्स बेस्ड डिसीजंस ले लूँ. बिल्कुल है. नहीं एक- सिर्फ आपका डेटा आपने आप इंडस्ट्री की डाटा की बात मैं कर रहे हैं. इंडस्ट्री के ठीक data है जब की हम बात इंडस्ट्री के डाटा की बात करेंगे दैट मीन्स के इफ आई डोंट वांट टू एक्सपोज माय डाटा दो इट्स एक्सपोज्ड. हाँ. यस देखिए होता क्या इंटरनेशनली आई से यस मुझे इंडस्ट्री डायनामिक्स के साथ इनकॉर्पोरेट करो तो उसके लिए मुझे भी अपना डाटा एक्सपोज करना पड़ेगा उस इंडस्ट्री में आना पड़ेगा. Yeah. ठीक है तो दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल आई से आई डोंट वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री. देखिए फिर आप हमारे ऊपर डिसीजन छोड़ देते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे हाँ. कि यार आपका प्लेटफॉर्म डिसाइड करे कि किसके साथ बुक हो. आप मेरे साथ KPI डिसाइड करते हो फिर. So that means when we have this conversation, then you get then you agree or the business and the brand agrees with you, then only he can come into that loop ना. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा ये देखें this is what I think this is ये मैं बात करूँ तो लोग तो करते भी नहीं है. बिल्कुल ऐसे ही है. नॉर्मली इंटरनेशनल में यही होता है कि अगर आप गूगल से या माइक्रोसॉफ्ट से या किसी से भी आप अगर कहाँ वो जो कहाँ कंसेंट यही होता है कि भाई ठीक है जैसे कि अभी फेसबुक है फेसबुक आप कहते हो मेरा डाटा किसी को नहीं देना है एक एग्जांपल है तो फेसबुक आपको फिर आप फेसबुक पे आ नहीं सकते. देखिए ये it is देखिए हमारे दो मॉडल्स हैं. अगर आप ऑप्टिमाइजेशन पे नहीं आना चाहते तो आपका डेटा वुड नॉट गो इनटू अ डेटा फिर पूल उधर ऑफ से वो ऑप्टिमाइजेशन. वाइस वर्सा नहीं होगा फिर Why- आप अलग चल रहे हैं. फिर आप अलग फिर आप अपनी डिसाइड करें किस फिर कोरियर के आप साथ खुद बुक लगा करना दे है. चेक आरटीसीएस को दे दे आरटीसीएस को दे दे, RTCS, हाँ. या तो मेरे ही डाटा की बेस पे आपका सब जब इंजन आप उठा मेरे के डेटा पे ऑप्टिमाइजेशन पे जाना चाहते हैं तो योर डेटा विल has गो to इनटू be द पूल. exposed understood fine understood Will go into the pool of optimizing that. what is your message as an individual to the youth and startups. देखिए स्टार्टअप्स के लिए तो मैसेज बहुत क्लियर है क्या कि यस वी पाकिस्तान विल हैव देखिए हम उमर को endorse कर रहे हैं to give this message to the youth. Please उमर. सो स्टार्टअप्स के ऊपर मेरा ख्याल है कि मैसेज शुड बी वेरी क्लियर कि वैनिटी बेस्ड स्टार्टअप्स शुड नॉट बी बिल्ट कि यार मैं बॉटम लाइन नेगेटिव हूँ मेरे यूनिट इकोनॉमिक्स काम नहीं कर रहा है जस्ट कीप ऑन रेजिंग मनी और मैं कस्टमर एक्विजिशन पे लगा हूँ. पाकिस्तान में टू क्रिएट अ लॉन्गर टर्म सस्टेनेबल स्टार्टअप इवन यू नीड यूनिट इकोनॉमिक्स टू प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल इनटू योर बिजनेस. आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होने चाहिए. ट्रू मतलब कि हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते थे ये 24 मंथ लास्ट अगर हमारे यूनिट इकोनॉमिक्स स्ट्रांग ना होते. Also, yeah, on that note, find someone who sits on your money like a snake, like who sits on our money like a safe snake. So you need to be very frugal in spending the money. Yes, it is coming from the VC funds. It is venture money. Don't consider that as free. You have given the माले most. मुफ्त दिले बेरहम नहीं बनो ना. You have given the most expensive thing to them. That is your equity. And now, you have to create value for them. You have to create value for yourself. And you have to plan for the risks जो हमारी कंट्री में मैक्रो इकोनॉमिकली एग्जिस्ट करते हैं. और उसके लिए यू नीड टू बी अ स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स कंपनी जो सस्टेन कर सके बैड स्पेल्स को. एंड वी You need to have nerves of steel. And- Because especially operating in a place like Pakistan, the hits keep coming, you know. True. You think, okay, now it's going to get better, but Never उसी टाइम पे एक बहुत बड़ा हिट आ जाता है. yeah, but you need to have nerves of steel. It's not a. But the opportunity also is huge. ह्यूज So you just need to have, your eye देखिए, on the both ball. are एंड wide पे- ओवरनाइट सक्सेस की तरफ ना जाए. इट इज अ लॉन्गर जर्नी देखिए, स्ट्रॉन्ग वही है ना, फाउंडेशन दैट यू बिल्ड. कॉर्पोरेट सोच अगर हम सारे बना लेंगे ना
तो हम 10 साल की बात कर रहे होंगे. एक एम्प्लॉई आएगा तो वो भी आपके पास 10 साल होगा, कंपनी का विजन भी 10 साल हो जाएगा. हमें ये 10 ईयर प्रोग्राम पे लेके जाना है, 5 years to 10 ईयर प्रोग्राम पे लेके जाना है. जैसे कि इसको अख्ताम करते हुए मैं एक बात बताता हूँ. जिस तरह मैंने आपको बोला ना कि सारे ब्रांड्स, ये अभी तक किसी ने ये नहीं सोचा कि यार किस दिन जाके मैं COD बंद करूँगा, या मैं फेज रख लूँ कि मैं 2 साल की पीरियड में मैं 300 रुपया मिनिमम ले रहा हूँ एडवांस. वैसे COD आई डोंट, हमारा मेरा थीसिस है COD पाकिस्तान में बंद नहीं होगी. अच्छा Reason नहीं, being, सही है. इसीलिए उससे पहले एक स्टेप रख लिया कि किसी पॉइंट पे आके मैं तो सिक्योर हूँ कि यार कम से कम आपने अपना माइंड चेंज कर दिया, मेरा 300 रुपए तो दे दे, मेरा 200 रुपए तो दे दो, 100 तो दे दो, क्योंकि डेवलप मार्केट्स के अंदर कुछ तो दे दो. डेवलप मार्केट्स में कैटलॉग बाइंग होती है. यस, उस टाइम आप क्रेडिट कार्ड का नंबर लिख देते थे, उसको भेज देते थे Yes. पोस्ट में, और वो प्रोडक्ट्स आपको पैसे क्रेडिट कार्ड से कट जाते थे और प्रोडक्ट पोस्ट में आ जाते थे. पाकिस्तान में बेसिकली वो फेज कभी आया ही नहीं था कैटलॉग बाइंग True. का. तो जब हमने उसको लीफ फ्रॉग किया तो COD केम अलोंग विद दैट कि भाई मैंने अब प्रोडक्ट बेचना है तो पैसे कैसे कलेक्ट करने हैं, क्योंकि या देखिए, पैसे कैसे देने यस, हैं. क्योंकि देखिए जो मार्केटिंग करवा रहे हैं ना, उनके लिए ये चीज़ भी है, वो समझ नहीं रहे. 5 लाख के साथ 50 लाख, 10 लाख के साथ करोड़, 15 लाख के साथ 1.5 करोड़, 20 लाख के साथ 2 करोड़ आ रहा है. ऐसे ही किस पॉइंट पे जाके मैं 1 रुपया नहीं लगा रहा हूँ, किस पॉइंट पे साल में या 5 साल में या 3 साल में मैं कम पैसा लगा रहा हूँ, जो मेरा एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बनेगा, मैं हर महीने करोड़ 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 तो कर रहा हूँ, पर कैसे आप 15% एड स्पेंड रख के या 10% रख के फ्लैट उसको चलाई जा रहे हैं, जिसमें ईद भी आ रही है, जिसमें सेल भी आ रही है, जिसमें 11/11 भी आ रही नहीं. वो देखे ना, वो एक बात है ना, वो हम लोग बिगर पिक्चर देख रहे हैं कि पूरे साल में ये करना है, ये करना है, वगैरह करना है. कितने लोग तो ये तय करते हैं कि हमने ग्रो करना है, तो उसके लिए काम करते हैं, यार देखते हैं पहले 10 करोड़ हो सकता है, नहीं हो सकता है, डालो वर्चुअल इन्वेंट्री करके देख लो, ऑर्डर कैंसिल कर देना, खैर हमें पता चल जाएगा कैपेसिटी है ग्रो करने की इतनी. तो यू गेट मी, दिस इज वेयर वी स्टैंड. बट गाइज, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. आई विश यू बेस्ट ऑफ द लक. डेफिनेटली, यू नो, बिफोर दिस पॉडकास्ट, people those who know you, as in 3 of you, would definitely trust Smart Lane, and once they use Smart Lane, definitely they'll get addicted to it, because it's a good opportunity that you people coming, जब कंफर्ट जोन से निकल के फिर आपने कंफर्ट जोन में घुसे, फिर निकले और फिर अपने आप को जो है ना उस चैलेंजिंग सिचुएशन में लाया. It's not the product, it's the product for the people. But you know, people like me, we see this, I see this, that how much effort did you put, and you are putting in this to make it scalable. Yes, पैसा तो किसी भी सुकून वाली जगह से भी कमाया जा सकता है, पर यहाँ पे जहाँ पे इतनी large transactions हो रही होती है, number of orders, you know, so many other things, it's very hard, and it's good कि you know you people are keeping it up. I wish you best of the luck, and thank you once again. I would like to thank you on behalf of Ijad House, Future Fest, and myself, that you people took out the time, came here. We'll definitely keep in touch, and I wish you best of the luck. Thank you. Thank you for having us. Thank you.